Rajasthan, currently pursuing MBA from Lachu Memorial College, which is in Jodhpur itself, and my specialization for MBAs are finance and marketing. Thank you. That's me. Thank you. Abhishek, Janta Group. Founder of Janta Group, assistant my organization is manufacturer of LED lights and works in the field of robotics. Okay, thank you. Yogesh Soni. Yogesh, are you here? I handle schools also. Yes, I think we missed. Yeah, now please again. Okay, see, basically, I am a teacher. So I teach students also for IIT, JEE, and medical. And I have a couple of my own schools. So I handle those schools also. So I'm And a, your location? my location is Jaipur, Rajasthan. Okay, thank you. Mr. Hari. Hello. Yeah, my name is Hari, and I'm from Mumbai. I'm working for National Chromatography as a sales head for Pan India, and I'm a B in instrumentation and a PGDM from Valley Cares in marketing and HR. Thank you. Atul sir. Hi everyone, this is Atul Kumar. I'm basically from Jamshedpur in Jharkhand, in US since last 20 years, currently based in San Jose. And I do a couple of things, anything to do with startups. Okay, thank you. So, yeah, my name is Vishal Kumar, as seen, and I'm the founder of Learning While Traveling. So I'll be moderating the session. There might be people who will be joining later, and feel free to raise your hand if you would like to speak the next. So, coming to our agenda, we did discuss this a bit day before yesterday. That what can we suggest uh, government to do after 17th May, since there is a lockdown extension. So what after 17th May? Should there be complete lockdown lifted or partial, or which way things can be? And then, agenda is also, the education thing, how it's impacting education and what can we do. So I think the very first question we can discuss is the extension of lockdown with the terms and conditions. Uh, do you see any reforms? Like, do you see any changes in this in the next extension or no extension? What do you think from your personal point of view? Yes, Mr. Hari, you have any suggestion or comment on the current situation? Hello. Okay, Brijesh is here. Hey. Yes, Bridget, you can introduce maybe quickly. I think you were not there when I was. So I'm Brijesh. I work. I'm from Delhi, and मेरा घर दानापुर में है. And I'm having a little venture in PPE kits, like in collaboration with you guys. We are making PPE kits, and I'm also an open source enthusiast. So we are making a online school management system. Okay. Yeah, end-to-end school management system with 60 modules. कि कोई भी अगर स्कूल है वहाँ पे बच्चों को सीखने की जिज्ञासा होती है, so that entire system can be study material. Can be converted to an online platform, positive. Okay, so it's like you are providing service to the existing schools to upgrade their offline to online. Already we are providing services to 250 schools and around 300 colleges in India. Okay, and this was pre-COVID or with COVID only you started this? We just started in January. Somehow things were lined up, and recently there's a lot of acceptance for it. We also introduced our webinar platform so that teachers and students, they can talk to each other. Like अगर 5th class, अगर 7th class का science का subject है, तो टीचर और बच्चे एक दूसरे के साथ कंटिन्यू बात कर सकते हैं और कितने भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चीज़ का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है. We have a fixed cost of 7 to 8 rupees,
per student per month. That's it. Okay, so that's what you charge, let's say school or student. School. School. Yeah. Okay. Yeah. So, but 7 to 8 rupees, let's say 10 rupees for simple calculation, and any number of students can join there, or like 100, 200? Positive. Any number of students can join in, and this 8 rupees includes the website for the school Mhm. management system, CRM, if Okay. some admission queries there, digital marketing, and a mobile app. And parents of the students, they can see, माँ बाप का कलेजा धक धक होता है मेरा नॉर्मल सिनेरियो में कि मेरा बच्चा घर पहुंचा नहीं पहुंचा, so they can track their system, student kids real time, as well as it includes RFID cards, so that teachers can admin management can have like what is the attendance for the day, and the same cards can be used in library कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक आई है, कौन सी बुक इशू हो रही है, और सेम चीज़ बच्चे मोबाइल में देख सकते हैं कि लाइब्रेरी की कौन सी बुक्स हैं, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी इसी में कि अगर स्कूल चाहे तो मोबाइल ऐप पे ब्रॉडकास्ट कर दे नोटिफिकेशन, एसएमएस भेज दे या ईमेल भेज दे, तो काफ़ी इन डेप्थ. But 7-8 रुपए में is it feasible to get all those? It's in-house, like we are making in-house and we really want to promote. हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे तो लगता था यार कोई चीज हमें एक व्यवस्थित तरीके से बता देता तो जितनी मेहनत हम लोग करते हैं थोड़ा दिशा मिल जाती तो धुएं निकाल देते. एंड इसी प्लेटफॉर्म में वी आल्सो हैव ऑप्शन फॉर स्टूडेंट जॉब्स कि अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो स्कूल स्टूडेंट की क्लासेस ले सकते हैं शाम को. Okay. और जो स्कूल स्टूडेंट पे कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फीस को सब्सिडाइज करने में थोड़ा हेल्प करेगा. तो बच्चों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है और स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक जॉब पोर्टल भी है और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है. So it's a full-fledged student service platform. We are calling it Campus 365. It is like school and campus management system. You can check it out. Campus Yeah, sure. 365. I'm just writing it. Campus Yeah, 365. Okay, that's good. So you have got this X number of schools and colleges in last 3 months, right? Yeah, positive. Like few are the international one, like Canada से हैं, A1 यूनिवर्सिटी एंड ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटी को ऑनबोर्ड कर रहे हैं. तो एक तरह से अपने पास यूनिवर्सिटी का भी करिकुलम आ गया है. तो कई बार जैसे मैं जब खुद पटना में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को ये लगता था यार 12th के बाद करियर ऑप्शन क्या है पता ही नहीं है. तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वहीं अगर अपने को एक सिलेबस टाइप का ऊपर ऊपर से पता चल जाए तो हमें ये पता चल सकता है कि 12th के बाद ये भी डायरेक्शन होता है, ये भी डायरेक्शन होता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, और जैसे इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जैसे फर्स्ट एड सर्विसेज. लोग इसमें भी अंडर ग्रेड्स एंड मास्टर्स करते हैं, एक एक नीश में अंडर ग्रेड्स एंड मास्टर्स करते हैं. तो इनडायरेक्टली हमारा भी डेटाबेस बन रहा है, यंग कंपनी है और एनी हाउ सबको हेल्प आउट ही करना है. तो इंडिया में वी आर प्रोवाइडिंग 7 to 8 रुपीज, और इंडिया के बाहर जब जाते हैं देन वी चार्ज $1 पर स्टूडेंट पर मंथ. और इसमें NIOS के स्कूल आ जाते हैं. कई बच्चे होते हैं यार हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिए लेकिन वो विषय का टीचर नहीं समझ में आता, क्या करें बताओ. तो फिर these guys can have their own community and they can opt for good teachers nearby. So we have a pool of teachers, students and school that is side services. स्कूल को तो एंड टू एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं. और एक यूनिक चीज़ है कि हम मोबाइल ऐप में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके देते हैं, तो बच्चे अपनी फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को या स्कूल के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पे कर सकते हैं. तो लेट फीस आपका ख़त्म हो गया, और कई बार आने जाने में आपका तेल जितने का तेल जाता था उतने में आपको मतलब फीस ही मतलब सब कुछ हो जाएगा. चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई कर दी हैं. मतलब लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बाहर जब यूएस वगैरह में जाते हैं वहाँ पे जब चीज़ें देखते हैं तो लगता है यार हम लोग कहाँ जो है मतलब अननेसेसरी लोग परेशान हो रहे हैं. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं. और दूसरा वेंचर है मेरा अभी पीपी किट्स में, मतलब हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके अभी रिक्वायरमेंट है तो इन हाउस पीपी किट बना रहे हैं, और DRDO और IIT बॉम्बे से सर्टिफिकेशन वगैरह लिया है. तो प्रॉपर फुल फ्लेज किट्स वगैरह बना के दिल्ली गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं. और अभी मास्क वाले पे किया है कि N95 मास्क खत्म हो रहे हैं. तो दूसरा एक टेक्सटाइल इंजीनियर्स हायर किए थे
देन वी गो N95 अगर आपका 99.5% एफिशिएंट है तो हमारा वाला 98% एफिशिएंट है। N95 से एक स्टेप नीचे है, लेकिन 3 लेयर पॉली जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, 3 लेयर पॉली से काफी ऊपर है, और प्लस ये वॉशेबल है। सो कुछ आई एम बेसिकली इंजीनियर, और मर्सिडीज बेंज में R&D इंजीनियर था। फिर लगा इतना पढ़ लिख के बाहर जाने से अच्छा घर में ही कुछ करते हैं। सो आई केम बैक 5 years ago, और छोटी छोटी चीज़ें बनाता हूँ, मतलब सोलर पावर्ड आटा चक्की, कि जो किसान मतलब गेहूँ बेच के, ये गेहूँ 12 रुपए 15 रुपए किलो बेच रहा है, पीस के आटा बेच दो। क्वालिटी कंट्रोल इज योर कंसर्न, अगर उसमें कुछ हेल्प चाहिए वी कैन अरेंज अ वर्कशॉप। सो Sure. I help, but I help with a sense of ownership. So people involved, they should get a sense of ownership that we own it. Else it's like it's a casual attitude. अरे वो जाने उनका है, सरकार जाने उनका है। सरकार ठीक है वो कर रही है, जो लोग अपना कर रहे हैं, बट आई क्रिएट अ पैरेलल सिस्टम एंड आई वर्क विद सेल्फ ड्रिवन पीपल कि हमें कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं, देखेंगे सक्सेस होते हैं नहीं होते, लेकिन एफर्ट तो पूरा मानते हैं। So Campus 365 is the product which I'm focusing on. और इसी के साथ साथ सोलर पावर्ड कंप्यूटर्स आई प्रोवाइड टू किड्स, कि तुम बस लैपटॉप थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और जो फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर अगर किसी को सिस्टम वगैरह चाहिए तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो वी वर्क ऑन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स लाइक रास्पबेरी पाई, आर्डिनो, और उसी के ऊपर एक डिस्प्ले लगा के इट्स अ फुल फ्लेश कंप्यूटर। And there is something called open satellite. So you can get satellite, you can get communication through satellite. So that's a one-way communication. You can download only from satellite library. उसके लिए आपको इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आराम से कंप्यूटर पर गेम खेलो, फॉर्म भरो, तो दे गेट कंफर्टेबल विद दैट। और बेसिक चीजें बताते हैं लोगों को, ईमेल कैसे भेजें, कि किसी चीज का फॉर्म कैसे निकला, वो कैसे, हाउ टू चेक ऑथेंटिसिटी। आई आल्सो कंडक्ट सम वर्कशॉप। लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन you need to first check the authenticity of information. So I conduct a workshop on how to check the authenticity. उस टाइप के छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं, यही सब कर रहे हैं। So education and some medical things you are working on as हाँ, a PPE broad. kits as per the requirement, as per the Yeah. requirement. PPE kits में भी अभी need आ गया, तो I think maybe you are venturing into. Sorry. But you started with, let's say, I mean the PPE kits. So what I think is a new demand, right? That is in the market. Yeah. So we had another project that was LiDAR-OG, जहाँ पे हम गांव देहात का कचरा लेके उससे हम CNG गैस बना रहे थे। So you can check lidarog.in. लेकिन अभी क्लोज डाउन के चक्कर में वी हैड 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अहमदाबाद, दिल्ली एंड कोलकाता। सो तीनों लोकेशन अभी क्लोज हो गए। सो वी आर यूजिंग ऑल दोस ह्यूमन रिसोर्सेज एंड every material to make those kits, and right now we are making like 25,000 kits per day, or then we are providing it. So we are just a basically like innovators and engineers, and like we just work on very simple solutions, simple things which is socially acceptable. Yeah, that's good. So you're part of a GD at 10 WhatsApp group also, or you're from any other group? Which one, sorry? I mean WhatsApp group. Which WhatsApp group are you like getting this? I know Atul sir. Okay. I know Atul sir, and I appreciate him a lot. So from him I got this message that we are going to have this kind of repetitive sessions. Okay. So yeah. That's good. Anyone? I think I think his product has a lot of things related to COVID. So I was trying to ask a bit more and more. Anybody else have any question on his on Brijesh's product, please? Yeah, hi Brijesh, Hari here. Namaskar, Hari sir. Yeah, I just मुझे ये जानना था कि this PP products, वो how you are supplying, in which locations right now? So we are supplying all across India. So few, it's since it is a necessity. So government, state and central government, they are very supportive for that, and we are supplying all across India. Okay, fine, no issues. Thanks. Yeah, okay, that's good.
So yeah, I think maybe Brijesh gave few solutions on our agenda as well, like how Okay. Okay. education can continue in this COVID lockdown, taking the whole thing online, and Yeah, he yeah, has yeah. yeah. Yes, Brijesh. So like I'm also into open source community. So we make operating system. We make operating system in Hindi language. And Okay. so any way you guys want any help, just let me know. I would be very happy to contribute back. So yeah. Sure, sure, sure. That's okay. So I think we have few more people joining now. So yeah, so coming to our agenda, which is overlapping to this a lot, anyways. So let's say from our side, what suggestions can we give to the government? I think maybe we start with Brijesh itself. Brijesh himself. Yes, Brijesh, do you want to give any specific suggestion to the government or the public of India from your own side that which you are seeing it as a gap that needs to be addressed like right away? So what I feel is like there's two kind of scenario. One is like what I feel is like people with capability have self doubt, Mm-hmm. and people without capability they are on like position of authority. So they are making decision on like whatever their understanding they have. So this was the inspiration, and we saw like this they are wasting taxpayers' money. There's no lack of resources. There's no lack of financial resource. There's no lack of capability. It's just like mismanagement of like people with capability are not in authority. So that was for me the inspiration, and I started my parallel activities. Mm-hmm. And in this COVID scenario, we have a different group of like biomedical hackers. We try to understand the medical electronics and try to provide solution from our side. And one of the solution which still we are working on is how to provide a hospital management system, because in this COVID, as it will progress, we are going to convert public space, for example, public school, into the healthcare facility. And then there's a three kind of communication needed: communication with government, communication with the hospital, and the communication with patient or seeker. And how to create this communication without disclosing the identity, because we don't want to disclose the identity of patient coming to the hospital. And also how to create a clear communication from hospital side key. We have only these many resources, we have only 20 kits. Even if you come and wait, like we can't cater your requirements. So seeker, a patient, before going to nearby health facility, he will know in advance like what are the nearby health facility and what is their capacity. Do they even have an empty bed? वहाँ पे जाके भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है. Mm-hmm. So we are working on a parallel hospital management system. It's still under development. I'll Mm-hmm. just share with you guys. Second project, which my senior teams are working on, is negative pressure chamber mechanism. We don't want air ventilation to flow from inside outside. Even if we are creating a public space, we want air to circulate from outside to inside. So guys are working, they have made a prototype of negative airflow mechanism. So air is flowing from outside to inside. And earlier, the first idea was to put a HEPA filter, but it also need a maintenance cycle. And we don't want to put an extra load on limited medical resources. So we are using a different mechanism to auto clean the filter mechanism. So that part is still under the way. Mm-hmm. And the third project is like what are the available resources? Like we found like filters and all. So we already worked on this filter. So these fabric has antibacterial, antifungal and antiviral property. अभी क्या हो रहा है कि N95 आप मास्क यूज कर रहे हैं और कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करना itself is a challenge. So few people from nanotechnology, they are working on spray. तो वो स्प्रे अगर हम किसी कपड़े पे कर देते हैं तो जर्म्स, वायरस और बैक्टीरिया उस पे जाके 2 घंटे में अपने आप किल हो जाता है. So that's auto killing the space. So that is reducing the load.
और दूसरा बस यही छोटी मोटी चीजें हैं। और उसके बाद देख रहे थे एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। So we worked on like education का we that's a finished product. Education Campus 365 is a finished product. So any school tier 3 छोटा सा भी स्कूल है किसी का, बच्चों को पता है नहीं पता है, तो उनको उनकी मूल भाषा में आराम से उनको सारा चीज़ समझा सकते हैं कि अब अपना क्लास शुरू करिए। टीचर नहीं तो देखते बिहार वगैरह में मेरे मामा लोग जो हैं वो सिर्फ मतलब पेपर वर्क ही करते रह जाते हैं, तो आदमी पढ़ाई कब करेगा? So that spoils the quality of work. And one more thing I observed is like ये पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी है क्या, या लोगों को ना वंचित रखा जाता है पढ़ाई के मामले में, अधिकार के मामले में। लोग वंचित रहेंगे, सवाल ही नहीं पूछेंगे, ये क्या तरीका है भाई? मतलब लोग सवाल नहीं पूछेंगे एक चीज है, और ब्रेन वॉश बड़ा जल्दी किया जा सकता है उनको। हाँ, और मतलब डरा के रखा जाता है। भाई तुम इलेक्शन लड़के आए हो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, टैक्स पेयर तुम पे पैसा देते हैं, थोड़ा मतलब अपने लेवल में रह के बात करो, थोड़ा लॉजिक यूज करके बात करो, ठीक है? और इतना ही अगर अपना चलाना है तो खुद का कोई बिजनेस चलाओ, उसमें चलाओ, फिर उसमें दिमाग लगाओ कितना एफर्ट लगता है। एंटरप्रेन्योर जर्नी थोड़ा सहो खुद से, टैक्स पेयर के पैसे पे उछल रहे हो आप। सो कैंपस 365 इज रेडी प्रोडक्ट एंड टू एंड, एंड देन वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह अभी देख रहे हैं, और इमीडिएट जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो फार्म कम्युनिटीज के लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। या ओके, ठीक है, ये तो तुम्हारे साइड से हो गया। व्हाट डू यू सजेस्ट टू अदर्स? लेट्स से you may be not be able to change everything. There are still what I'll suggest is like one more thing I observe, people come with solution. जैसे एक इनोवेटर का माइंड है, वो सॉल्यूशन लेके आ जाता है, उसने अपने पास आसपास समस्या देखी, उसको समाधान लेके आ गया, वो एक चीज है। लेकिन अपने बात विचार को किसी अनजान व्यक्ति को व्यक्त करना, वो अपने आप में कला है। आप अपने जान पहचान में लोगों को बता सकते हो, लेकिन अपनी बात लाइक अपना लोगों का अपना प्रोडक्ट या सॉल्यूशन है, दे कम अप विद देयर ओन प्रोडक्ट और ओन सॉल्यूशन, बट हाउ टू कम्युनिकेट विद समवन एल्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, using online technology, that itself is an art without making it sound like spam. Normally people start spamming. How to filter, मतलब भीड़ में से जो लोगों को फिल्टर आउट करना जिनसे आपके बात विचार मिल रहे हैं, और प्लस उनको अपनी बात व्यक्त करना, ये अपने आप में कला है। So we also provide help to other entrepreneurs who come up with specific problem or specific solution, or they just want to come and discuss something. So how to communicate this and how to create this channel, we also help in that case. So if someone like someone has in this group, they have their own idea or own solution which they want to communicate, and they are facing little difficulty in how to communicate without being physically present, so I can help in that. And that's one thing which like maybe we can help each other. Yeah, sure. Okay, let's get other people also. Yeah. So right now, one thing is also happening is overflow of information. You know, it's getting over exaggerated at times. Let's say somebody got beaten up and things. Maybe out of 1 million, one is getting beaten up, but rest of them, everybody is thinking that everybody is getting beaten up. So there is overreaction, underreaction, kind of like a split personality kind of thing happening, which is also creating a lot of emotional disbalance probably. So do we have, I mean, anybody want to comment on this maybe? So Vishal, I would like to comment. First of all, great work by Brajesh. I know Brajesh through that Jadeja Motwani Foundation, which I mean I have been volunteering with Asha Jadeja, and so Brajesh is one of the few people from Bihar who is doing something. Otherwise, most of the people in the foundation are from Gujarat and other places. There's Asha is from Gujarat. Now, coming to the point, the solutions, Brajesh talked about multiple solutions he has, right from the school management system to COVID solutions. One problem I'm going to be slightly more on the political side is that it's in the best interest of politicians all over the world that people are ignorant, poor, and hungry, because politicians can promise them, okay, we'll give you food, we'll give you free this, free that,
So that is the biggest problem. It's a global problem, not of one country, one state. Bihar, where Brajesh is from, I am also from, is an extreme example of that, or maybe many parts of sub-Saharan Africa. They're very, very affected by that, because see, the dictators there in Africa or in India also, most of the state chief minister are like dictators, because once they get power, they have no control on them. So in their best interest that people remain hungry, remain poor, because if people get employed, people are self-sufficient, then free politicians who will care about the politicians. It's only the whole mindset is about what freebie we can get from government, subsidy or free food, free this, free that. That is the politics which has grown, and Bihar is an extreme example of that for the last 50 years or maybe 400, 500 years. But many other states have the same thing problem. Andhra Pradesh also had, and Tamil Nadu, Gujarat, everybody has. But what was different about the other states is that the obsession which Biharis had with education and exams. So education, nothing wrong, but exam, and not about exam. Exam is just a means of getting into an IIT or any engineering college, or later on IAS exams, banking exams. So that culture of exam, safety and security, that has really spoiled the whole thing, because the whole atmosphere is all about how can I pass an exam and then do nothing. People apply for IAS civil service not because they want to do something. Okay, oh, once I become an IAS, I will change the world. No, their goal is once I become an IAS, once I become a bank officer, or I become even a peon or clerk in a government job, I will do nothing. So that culture is a big part of the problem. I'm hoping that people like Brajesh and many others is a private sector individuals, people like in this group, who are going to make the change. And we have to come up with solutions. Government can be a party to the solution, we can have alliances with them. But I personally learned that it's best to avoid government as much as possible, because government is like a Mahishasura. If you touch government, it will kill you, whatever the project you're trying to do. I want to add on that. Yeah, I want to add on that. Even like Jamshedji Tata, like the senior from Ratan Bhai Tata, he started airline company, and government was like, "Kuch bhi acha ho raha hai, I want to capture it," and they just took it up. And he then removed himself from the position of senior management, and like that airline started dropping down. That's Air India right now. So government always have this tendency to put their leg here and there. These are simply people without capability. So now, though, I'm like, let's create our own parallel system. Let's understand the economy. Let's understand the need. किसान को जरूरत है, लोगों को खाने की जरूरत है. We just have a logistic problem. We just have a community engagement problem. Let's work on it. Abhi, or they use a very nice strategy which even Spartans and like gladiator war, those guys also used to have this strategy. इतना अरीना बना के लोगों को जंग लड़ा के एंटरटेनमेंट ओलंपिक्स क्यों करा जाता था कि आम जनता को एंगेज रखो. अगर आम जनता किसी उलझाए रखो, विक्रम बेताल की तरह बेताल को उलझाए रखो, क्योंकि बेताल अगर खाली बैठेगा तो आम जनता सवाल पूछेगी. जब आम जनता सवाल पूछेगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा. इससे अच्छा उनको उलझाए रखो किसी बात में, किसी लड़ाई झगड़े में, इधर उधर की चीजों में. So yeah, that's I wanted to add. Yes, Atul sir, please continue. So I think Brajesh pretty well covered it very well. He gave that a very good example. Distract people attention. Sometimes even cinema, Hollywood, Bollywood, जो भी cinema है, TV serials, Doordarshan for example. I'm talking about India 1947 के once India got Doordarshan. I don't remember 1980s में या जब भी टीवी बहुत पॉपुलर हो गया इंडिया में, तो लोगों का फुल टाइम एंगेजमेंट हो गया टीवी देखने में. बाद में फिर जब से ये आ गया, GTV आ गया, एंड देन ऑल द सैटेलाइट टीवी चैनल्स, तो पूरी दुनिया क्योंकि सास भी कहो बहुत ही में बिजी है या क्रिकेट में बिजी है, मैच देखने में बिजी है, तो सोसाइटी को काम से दूर रखना है. तो क्रिकेट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बट बाद में क्रिकेट का पॉजिटिव रोल हुआ कि बिजनेस बन गया और कंट्री को यूनाइट किया. बट अदरवाइज क्रिकेट वाज आल्सो नेशनल पास टाइम. मैं जब बच्चा था, आई रिमेंबर व्हेन आई चाइल्ड, तो उस समय टीवी नहीं था. आई रिमेंबर कि रेडियो पे भी बैठ के लोग
घंटों घंटों बैठ के, चाहे वो ऑफिस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, सब लोग बैठ के रेडियो पे कमेंट्री देख रहे हैं, गावस्कर की, कपिल देव की एंड वर्ल्ड सब। तो इंडिया में टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, हॉबी है। और 1.3 बिलियन लोगों की कंट्री है, उसमें लोगों के पास कुछ करने को नहीं हो तो वो बहुत बार यंग जो यूथ है उसके पास एनर्जी होता है, यूथ का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो यूथ क्या करता है, यूथ कुछ लड़कियों के पीछे भागेगा, छेड़छाड़ करेगा, बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, मोहल्ले का डॉन बनेगा कि सबसे बड़ा डॉन मैं हूँ यहाँ का। या कुछ ही उसमें से 100 में से हो सकता है 10 या 5 होंगे जो कि जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव गाइडेंस मिलता है पेरेंट्स का बैकग्राउंड या जो भी स्कूल का, तो वो पॉजिटिव, वो सारे कुछ लोग कोई स्टार्टअप करेगा या कोई सोशल वर्क करेगा, एजुकेशन करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा इजीली चले जाते हैं क्योंकि एक इन्वायरमेंट नहीं है और दूसरा बात कि वो उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। अभी थिंग्स हैव चेंज इन द लास्ट 10-15 years, as I've seen कि आप किसी भी बड़े शहर को दे लो, बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, और इवन छोटे छोटे शहर में, जैसे इस ग्रुप में ही बहुत सारे लोग हैं। अब राजस्थान रिलेटिवली कंजर्वेटिव सोसाइटी था, बट जोधपुर में और जयपुर में इतना एक्शन है, वहाँ पे इतना एक्शन है, उदयपुर में। तो दैट आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ होप, पॉजिटिविटी। लेकिन एट द सेम टाइम की सच ए ह्यूज प्रॉब्लम, 1.3 बिलियन लोगों को पॉजिटिवली एम्प्लॉयड रखना, स्पेशली हमारे पास फ्यूचर में जो नया चैलेंज आ गया है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, कि लोगों को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इज गोइंग टू बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल गवर्नमेंट्स। तो लोगों के उस एनर्जी को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैलेंज किया, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द कोरोना। ने लोगों को एक अच्छा लेसन दिया कि आप घर में बैठ के भी रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो आउट एवरी डे, यू डोंट हैव टू गो टू अ पार्टी और बार और डिस्को और व्हाटएवर। आप घर पे बैठ के चाहो, पढ़ाई करना चाहते हो पढ़ाई करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हो फैमिली के साथ बिताओ, खाना बनाना सीख, जो भी करना चाहते हो तो गुड। एंड द अदर लास्ट पीस ऑन दैट इज ऑनलाइन इज द बिग थिंग। कि इंडिया में इंटरनेट नहीं था टू द एक्सटेंट डेवलप्ड वर्ल्ड में है। तो अब इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अच्छा आ गया, थैंक्स टू थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का था, एंड देन थोड़ा बहुत रिलायंस का जियो आ गया, थोड़ा एयरटेल का आ गया। अब इंटरनेट ऑलमोस्ट है छोटे छोटे कुछ गांवों को छोड़ के। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी एवरीबडी हैज इंटरनेट। तो पॉजिटिव कोई चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, जो अभिषेक और मैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कराने का, या और भी बहुत सारे लोग हम लोग कोशिश करते हैं। इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग, देयर इज एनफ नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड, दे जस्ट हैव टू look out for it, and that's where groups like this we can be a change enablers for that. Yes, Ankit. डेफिनेटली अतुल जी ने तो पॉइंट सही बोला। एंड 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, सो काफी चैलेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के। बट एक चीज से मैं काफी डिसएग्री करूंगा। किसी ने बोला कि गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर टू बी अराउंड, you know. I don't think that's gonna work for a long term, and even the people are not, nowadays they are quite smart thanks to the internet and thanks to the penetrating, efforts by geo and government policies. It's not gonna happen. People knows what unemployment is and where the hunger is going and where it's all coming from, corruptions and everything. हाँ, 10-15 years पहले mentality थी लोगों की, जब people were not educated, और everything was whatever they used to say, the politicians used to say, we used to believe it. But now definitely the things are changing. No one is going to take it anywhere if you are responsible for creating unemployment, or down, if the GDP is falling down, even if no matter how big fan I am of Modi ji, but definitely if it's going down somewhere, it's gonna strike my mind that something needs to be done. So and the second point is coming to the youth of India, where people say that we just kill time by doing nothing, and we don't have anything to do, and we just play games or do stuffs and chhed. I guess as compared to the Western world, definitely the people of the current situation of the youths of India is quite better, as compared to the Western cities, be it the crime rate or anything.
अब ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, बट स्टिल वी आर इन अ बेटर प्लेस थैंक्स टू the values which are being provided by our elders. And maybe past time, so PUBG तो सब खेलते हैं, western में भी खेलते हैं, इंडिया में भी खेलते हैं, but definitely if you see the big names in the engineering and the doctor world, definitely the Indians are there. If someone is handling the finance of UK, it's an Indian. If someone is handling the topmost companies in US, it's all Indian. तो डेफिनेटली कुछ तो चीज है जो इंडियंस ने थोड़ी बहुत मस्ती के साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई की होंगी कि आज वो ये लेवल पे है. सो डेफिनेटली बेवकूफ तो लोगों को बनाया नहीं जा सकता है. अब people are very smart and they know how to tackle these situations. अभी अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी तो अगले बार में मोदी जी भी सही नहीं करेंगे तो क्या पता उनको भी वो. आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी बाय द वे, बट सबको अच्छा नहीं चलेगा तो कितने दिन सरकार चलेगी. अब बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों को सालों साल. ममता दीदी तो अंकित, आई विल ऐड टू दैट. आई वाज द वन हु सेड कि लोगों के पास कुछ काम नहीं, लोग टाइम वेस्ट करते हैं. तो आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ भारत एंड मोदी जी एंड स्टफ लाइक दैट. मैं सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ, तो 90% टाइम इंडिया पे ही ज्यादा सोचता हूँ, करता भी हूँ. तो मेरा पॉइंट ये था कि एक बहुत बड़े इंसान है, उनसे मैं उनका अशोका फाउंडेशन के फेलो, वन ऑफ द टॉप मोस्ट गाइज इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. वर्ड बेसिकली उन्हीं का कॉइन किया हुआ है, बिल ड्रेटन. तो एक उन्हीं के एक कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था किसी ने, तो व्हाट समबडी सेड वाज कि यूएस ने एक काम अच्छा किया और बहुत सारे यूरोपियन काम, कि सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ पे यूएस में क्या है ना कि all the cities of US, everywhere, छोटा छोटा गांव भी होगा, they will have a library, and library is free. All the libraries in America are free. And libraries has internet, and library has book. पहले internet नहीं होगा, अब तो most libraries are internet. They have books, and they have also place for people to do some other activity. Children, no, library is the meeting place where most people meet. In the pre-corona days also, if you go to any library anywhere, you will find बच्चे जिनको पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग गेम, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज हो रहे हैं. तो लैक ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यूएस में एक काम बहुत पहले जो किया, और भी डेवलप कंट्रीज ने किया, कि पूरे कंट्री को लिटरेट बना दिया. एक बार आपने लिटरेट बना दिया तो उसके बाद वो लोग फिर दे कैन चूज द राइट गवर्नमेंट. तो इंडिया में क्या है कि लिटरेसी भी इंडिया में 1947 के बाद ऑलमोस्ट टिल रिसेंटली भी इंडिया में 100% लिटरेसी नहीं आ पाई है, बट काफी आया है. अभी हम लोग मे बी 70%, 80% होंगे लिटरेट, या मे बी 90% होंगे. आई डोंट रिमेंबर द डेटा, बट द फैक्ट दैट we did not have literacy, that also accounted for a lot of problem. कि जो literate लोग हैं, जो जिनको पढ़ना आ गया, वो लोग न्यूज़पेपर पर, इंडिया में बहुत लोग गांव का भी आदमी बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, बट अखबार अगर उसको मिल जाता है तो उसको बहुत पता है कि क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं. हर पॉलिटिशियन के उससे भी ज्यादा कि इंडिया के गांव के इंसान को डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जकरबर्ग के बारे में ज्यादा जानकारी होती है कंपेयर टू मेनी people in the urban places. तो काफी अवेयरनेस भी है, लिटरेसी भी चाहिए था. वो जो फाउंडेशन स्टेज जो था ना, वो हमने 50-60 साल में नहीं बनाया. अब फाइनली इन द लास्ट 15-20 years, नॉट ओनली मोदी जी, उसके पहले भी जब लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में थोड़ा सा सैटेलाइट टीवी का भी बहुत बड़ा रोल है. जब जी टीवी आ गया, तो जी टीवी की तरह से ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह सारा, तो लिटरेसी इज द नंबर 1 थिंग जो कि अगर आ जाएगी इंडिया में, उसके बाद मतलब कि हर गांव में एक लाइब्रेरी आ गया, हर गांव में. तो स्कूल से भी ज्यादा जरूरी है कि लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी आ गया ना, तो इसको इंटरेस्ट खुद से भी जाके पढ़ लेगा. तो दैट इज अ थिंग इंपॉर्टेंट थिंग, एंड उस पर काफी काम हो रहा है. दैट्स वेयर ग्रुप्स लाइक आवर्स एंड ग्रुप लाइक व्हाट अभिषेक जनता इज डूइंग एंड मेनी अदर्स इन द ग्रुप आर डूइंग. कोई जोधपुर में कर रहा है, कोई बिहार में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है. दोज आर द एफर्ट, मिलियन एफर्ट्स नीडेड. एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर है V.S. Snapple, उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो दैट्स अ वे आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू रीड ऑल हिज सीक्वेंस ऑफ. उनकी जो पहली बुक थी मिलियन म्यूटनीज नाउ, यानी कि पूरे इंडिया में उनको म्यूटनीज दिख रही थी. बाद में फिर उन्हें उसके पहले था एज लैंड ऑफ डार्कनेस कुछ था, बट उसके बाद उनका ओपिनियन चेंज हो गया एज बिकॉज नोबेल प्राइज विनर है, बहुत बड़े राइटर हैं. बट V.S. Snapple ने पूरी इंडिया की हिस्ट्री ट्रैक की है कि पहले इंडिया कैसा था, अभी क्या है,
और अभी काफी होपफुल है, अभी उनको काफी होप दिख रहा है। और ऐसी तरह से दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, पॉल क्रुगमैन हो, चाहे क्या कहते हैं दिस गाय, द वर्ल्ड इज फ्लैट वाला गाय, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को इंडिया में काफी होप दिख रहा है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज कोरोना। पूरी दुनिया तबाह हो गई है, फ्रांस से लेकर जर्मनी, जापान, अमेरिका की सबसे हालत खराब है। एंड इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ की कुछ पॉजिटिव स्टोरीज दिख रही है कि कैसे कोरोना को हैंडल किया सकता है एट सच ए लार्ज स्केल। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ भारत। एंड I'll stop. Yes, Sanket, you want to continue? Hello. Yeah. Yes, Hari, Mr. Hari. Okay. Yes, yeah, I just want to agree, like rightly said by Atul sir, that this we are leading in the world in case of coronavirus, like the fight against the coronavirus. We are doing it very well until like अब तक तो सब कुछ means we are the best. अगर population wise भी compare करें, so India being such a huge and densely populated country, number of cases are very less, and accordingly अभी testings भी चल रहे हैं. So another thing is जो political issue जो आता है, जो educating people on politics, so इसमें मुझे लगता है इंडिया अभी भी काफी पीछे है as compared to many other countries, क्योंकि यहाँ पे आज भी वोट बैंक का जो सिचुएशन है कि इवन लाइक मैंने रिसेंटली जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे उसमें भी मैंने देखा कि बहुत से लोकेशंस पे तो इवन दे ब्राइब्ड द पब्लिक, यानी सबके घर पे जाके 2,000 के नोट दिए, 1,000 रुपए के नोट दिए, बोला कि हमें वोट दीजिए. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ लीगल और नॉट एक्सेप्टेबल in a fair practice of choosing a party in election in a democracy. It is not actually correct thing, but ये सब हुआ है. So the mentality of that voting public is like कि हाँ इसने मुझे आज 2000 दिया है, he will definitely help me again. और वो वही चीज सोच के जो है they bring the wrong government in that case. So wrong person को elect कर लेते हैं वहां पे और गलत सरकार आ जाती है. So ये चीज जो है, I would like to add, Hari has asked a very important point कि earlier people used to be bribed for votes कि मैं तुमको फ्री में चावल दूंगा या ये yes, दूंगा या दाल दूंगा. laptop, Now हाँ, and now people are asking for more. People are asking me, boss, I want education, I want good health. तो जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में होता है, तो that Indian का जो वोटर है ना, they have started to become more demanding कि हमारे मेरे गांव में रोड नहीं अभी तक आया, मेरे गांव में पावर नहीं आया. Those are the issues people have started demanding, and that is a very terrific thing. No, that thing needs to be improved more, because अभी जो recent में this Shine Bagh and all, so इनका जो means why these people are getting brainwashed and how they are opposing the government. They do let the government do anything. It might not even be related to them, but still they want to protest against it. So अभी भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि there is a lot of chunk of public in India who still needs to be educated. So यहाँ पे एक बहुत अच्छा scope है for other countries also कि यहाँ पे कुछ ऐसा अगर कर सकते हैं investment. And definitely Western countries में देखा जाए तो they are much educated in this type of things, and they do they do come up with innovative ideas and investment ideas in India, but they fail badly because of this type of hypocrisy, politics, and this type of mentality of people. Because कि मैं अगर आगे नहीं जा सकता हूँ कि I will push back the person who is trying to go ahead of me. Some time of इस type का जो थोड़ा सा mentality है इंडिया में ज्यादा मिलता है. So I feel there is a lot of scope to be improved. बहुत कुछ यहाँ पे improve हो सकता है अभी भी. और coming to education, like ये जो चीजें है, मुझे लगता है कि ये सब चीजें बच्चों को right from the level of education, like primary education, उनको ये सब सिखाते हैं उनके इसमें
सिखा के उनको ट्रेन करना चाहिए ये सब चीजों में, कि हाउ दिस पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिक्स, हाउ दिस इट इज गोइंग टू अफेक्ट देम इन फ्यूचर. Correct. Yes, So, Neeraj. I just want to add 1-2 points. Like Atul sir was speaking कि पहले गुंडागर्दी वाला और वो सब गली मोहल्ले का डॉन बनना है, वो सब चलता था. मैं अभी गुड़गांव में काम करता हूँ एंड आई बिलोंग टू अ प्लेस विच इज इन इनर हरियाणा. तो हरियाणवी जो कल्चर है, मतलब हमारे टाइम पे जो होता था बेसिकली जब हम स्कूल में थे, तो उसमें तो ये सब था कि कोई बदमाश बन रहा है और वो सब लैंग्वेज और वो लहजा और उस तरह से गली मोहल्ले में रहना. बट स्टिल अभी जो मैं एक चीज देख रहा हूँ ना, बच्चों में अब पढ़ने की, और खासकर जब से ये ऑनलाइन लर्निंग जैसे यूडेमी और ये सब Udacity और ये सब शुरू हुआ है, कोर्सेरा वगैरह, बच्चे खुद से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और वो इन चीजों में घुस के कुछ ना कुछ, मतलब दे ऑल आर लाइक मैं एक अपना स्टार्टअप बनाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत कमाना है, मुझे कुछ बहुत ऊंचा ऐसा करना है जिससे मेरा नाम होगा. उन सब चीजों की तरफ दिमाग चल रहा है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अभी कुछ टाइम पहले Udacity में बीच बीच में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि आप एक छोटा सा पहले ब्रीफ कोर्स करो और उसके बेस पे फिर दे विल सेलेक्ट फ्यू पीपल जिनको वो नैनो डिग्री उनका प्रोग्राम होता है, उसमें फ्री में सर्टिफिकेशन कराते हैं, जो कि वैसे 40 to 60,000 में जाके पड़ता है. तो आई समहाउ ज्वाइंड वन ऑफ दैट जस्ट फॉर द नॉलेज कि होता क्या है, ये क्या करते हैं. तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे मतलब लोग है ना स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, वो स्लैक पे चैनल्स बनाते हैं और फिर एक स्टार्ट में एक सेशन रखते हैं सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो उसमें बहुत सारे इंडियंस, मतलब अपने यहाँ के कॉलेजेस के बच्चे अराउंड इन थाउजेंड्स उसमें चैनल में थे. एंड व्हेन दैट सेशन स्टार्टेड, तो जो मॉडरेटर था जो Udacity की तरफ से, उसने ज्वाइन नहीं किया था, तो सबने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया. तो जो वो गुंडागर्दी वाली बात है वो वहां पे कैसे स्टार्ट हुई, किसी ने बोला भारत माता की जय, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी थे, बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स थे, मतलब उनको सीखना है, लेकिन वो जो कीड़ा है ना, वो बदमाशी वाला, वो उन्होंने वहां भी दिखाया. और फिर उसके साथ साथ कम से कम 100 लोगों ने भारत माता की जय, भारत माता की, फिर कुछ पाकिस्तानी उल्टा सीधा बोलने लगे. तो बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो अब थोड़ी सी एक डायरेक्शन चेंज हो रही है जो मैं देख रहा हूँ. दूसरा एक पॉइंट मैं पॉलिटिक्स के बारे में बोलूंगा. जो पॉलिटिक्स ऑफ अभी जो फ्री गिविंग और ये सब चल रहा है, जो दिल्ली से शुरू हुआ है मेनली अभी के रिसेंट टाइम्स में, और बहुत बड़े लेवल पे मतलब उसके गेम्स भी देखने को मिले हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. दिस इज रियली समथिंग विच इज वरीसम, क्योंकि लोगों को बहुत इजीली आप इस तरीके से बहका के यू कैन इजीली गेन वोट्स. तो ये एक जरूर एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक बड़े लेवल पे एड्रेस किया जाना चाहिए. ठीक है, ये फ्री वाला तो आई थिंक इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ प्रीमियम मॉडल. कुछ चीज फ्री दो और फिर बाकी काम करा लो, ये करा लो, वो करा लो. तो आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या even this sir please continue. yes फ्रीमियम इज डिफरेंट कि मैंने कुछ बेसिक चीजें लोगों को फ्री दिया और एडिशनल सर्विसेज के लिए कि आपको, चलिए मान लीजिए कि आपको गूगल का मॉडल बेस्ट है. गूगल ने सर्च लोगों को फ्री में दिया, google.com फ्री फॉर द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन नॉलेज सर्च करो फ्री में. एंड इफ यू वांट समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, जीमेल भी बेसिक फ्री है, बट ऑन टॉप ऑफ इट क्या आपको टेराबाइट्स में स्पेस चाहिए, देन यू पे एंड यू मेक मनी फ्रॉम इट. सो दैट्स फेयर इनफ. या इवन मान लीजिए जूम पे भी, जूम का इनिशियल हमारे पास था कि 40 मिनट्स फ्री है, बट इफ यू वांट टू यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड देन अ पेड अकाउंट. So that is freemium and I think that's fair enough. But दिल्ली वाला जो मॉडल था वो फ्रीमियम नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें लोगों के पैसे से, टैक्स से ही लोगों को दिखाया कि हम तुमको बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ कि गवर्नमेंट का बहुत सारी जिम्मेवारी होती है. मतलब कि स्कूल जैसे एक अच्छा काम दिल्ली में हुआ, जैसे एजुकेशन के क्या नाम है वो आतिशी एंड फ्यू अदर पीपल हैव डन गुड वर्क, बट ओवरऑल आपने हाँ, बट बहुत सारे काम अपने फ्री के चक्कर में आपने ये एक इमेज बना दिया कि सब कुछ फ्री हो जाएगा और आपके पास रेवेन्यू नहीं है. बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, केजरीवाल गवर्नमेंट परेशान है क्योंकि उस पैसे नहीं है टू डू मेनी थिंग्स.
बट क्योंकि जब इकोनॉमी अभी थोड़ी शटडाउन हो गई तो टैक्स नहीं है, तो टैक्स नहीं, तो गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। तो फ्रीमियम मॉडल अच्छे से भी यूज होता है और कभी कभी मिसयूज भी होता है। मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगह पे हुए हैं एंड ओवरऑल पॉलिटिकल बात हुई तो दैट वे साउथ में, चाहे वो डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो, चाहे वो जयललिता हो चाहे करुणानिधि हो, दोनों चोर थे लेकिन काम भी करते थे वो लोग। बड़े बड़े कंपनीज आज कॉग्निजेंट का हेड की सबसे बड़ा ऑफिस वहाँ पे चेन्नई में है, इन्फोसिस एंड टीसीएस, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखोगे तो आइदर चेन्नई में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में, मोस्टली इन द साउथ ऑफ इंडिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया में देखो तो है ही नहीं, बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में। यूपी फॉर दैट मैटर के पास एक बहुत बड़ा आगे, यूपी इज दिल्ली का एक्सटेंशन है, तो नोएडा इज यूपी एंड नोएडा दिल्ली का, गुड़गांव इज एक्सटेंशन ऑफ हरियाणा। तो गुड़गांव और हरियाणा दैट वे उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दिया। तो आज देखो कि one of the fastest growing investment wise, startup wise, is Noida, Gurgaon, and they're all part of Delhi NCR, not the main Delhi but overall, and Delhi anyway being capital has many advantages. तो मेरे ख्याल से जो ये जो फ्रीमियम है और जो पॉलिटिशियंस के जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, तो द डिफरेंट मॉडल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। महाराष्ट्र का मॉडल बहुत ही अच्छा है, बट महाराष्ट्र सीपोर्ट पे है। गुजरात का भी अच्छा मॉडल था या है, तेलंगाना में या मतलब चंद्रबाबू नायडू का मॉडल अच्छा था, या जो भी आता है वहाँ पे। तो अलग अलग मॉडल्स इंडिया में है एंड वी हैव टू लुक कि कहाँ पे अच्छा चल रहा है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को कॉपी करना है। एंड जहाँ भी थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन हो जाता है ना, जैसे कि मैं बार बार मजाक ही बोलता हूँ कि दुनिया को तेलुगु लोग चला रहे हैं, क्यों? मतलब कि अमेरिका में ज्यादातर जो आप देखोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इज तेलुगु लोग, बहुत लोग आ गए क्योंकि उस जमाने में बहुत गरीबी थी वहाँ, पेरेंट्स डिड नॉट हैव, लोग भूख से मरते थे। आंध्र प्रदेश वाज रियली पुअर, मतलब कि क्या जगह का नाम बोल रहा हूँ, काकीनाडा, बहुत जगह था जहाँ की लाखों लोग मर जाते थे, भूख से मर जाते थे। बट वहाँ के जो पढ़े लिखे लोगों ने और जो लोग सोसाइटी में चेंज लाते, दे लर्न, उन्होंने कहा कि व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग को अपने बच्चों को बाहर भेजना, पढ़ाना है। तो अगर गांव में है तो हैदराबाद भेज दो या विजयवाड़ा भेजो या जहाँ भी भेजो, पढ़ाई, एजुकेशन। एंड उसके बाद भी उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल में काफी इन्वेस्ट किया। तो आप देखोगे कि हर तेलुगु का कोई ना कोई, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे बाहर में, यूएस में, यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में। क्यों? कि उनको लगा कि आंध्र प्रदेश से बाहर निकलो, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी जाओ तो तेलुगु लोग हैं, एंड दैट हेल्प देम क्वाइट अ बिट, बिकॉज अब एक बार आपका वहां चले गए, नए इकोसिस्टम में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिली, पैसा कमाया, फिर आपने अपने ही गांव में अपने दादाजी के लिए, पिताजी के, माँ के लिए अच्छा घर बना दिया, तो दैट रिवर्स फ्लो भी स्टार्ट हो गया। तो आज देखो, आज सक्सेस स्टोरी तो पूरी दुनिया को पता है, सत्ता नडेला, सुंदर पिचाई, ये सारे जो इंडियन इमिग्रेंट है, बट बिकॉज दे मूव्ड आउट ऑफ देयर नेटिव प्लेस and then and they moved out from the wherever they were and for higher education or for whatever, but उसके बाद उन्होंने खूब पैसा कमाया, then they also returned back। आज गूगल का बहुत बड़ा ऑफिस है हैदराबाद में, आज फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सबके ऑफिस है हैदराबाद में, या बैंगलोर सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट हुआ था, पहले बैंगलोर में सेटअप किया, बाद में फिर तो उसके बाद पूरी दुनिया आ गई, गूगल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट, अभी तो नई कंपनी है, बट सिस्को एंड ऑल दैट, सिस्को का सबसे बड़ा सेंटर बैंगलोर में है। तो दैट इज दैट आउटवर्ड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन इन रिवर्स फ्लो इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मतलब कि दैट इंटीग्रेशन, आपको जब तक आप दुनिया देखोगे नहीं तो यू वोंट नो कि व्हाट इज आउट देयर, आप सीखोगे नहीं, एंड देन टिल यू कम बैक टू योर रूट्स, देन यू वोंट बी एबल टू गिव बैक। तो बहुत सारे लोग, बड़े लोगों ने क्या किया है कि दे वेंट आउट, एंड इस पे मैं लास्ट बोलूंगा, उसके बाद से नहीं। गुरु नानक हैड गॉन टू अ विलेज, जो फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स, एंड उनको उस विलेज के लोग बहुत कमीने थे, बहुत ही रूड थे, बदमाश थे, बहुत मतलब बहुत ही वेल ऑफ विलेजेस थे, बट दे वर नॉट वेरी नाइस। एंड दूसरे विलेज में गए, दूसरे गांव में गए, तो दे वर वेरी वेरी पुअर पीपल, बट उन्होंने उनसे अच्छे से प्यार से उनको खिलाया। तो गुरु नानक ने जिन लोगों ने उनको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, उसको श्राप दे दिया, और जिन लोग बदतमीज थे उनको उन्होंने वरदान दे दिया।
वरदान ये दिया कि यहाँ पे तुम लोग हमेशा ऐसे ही पानी और हवा सब कुछ अच्छा रहे, फलसा अच्छी हो, कभी कोई दिक्कत नहीं हो इस गांव में, कभी कोई भूखा नहीं रहे। और जो गांव में बहुत गरीबी थी और जो लेकिन यहाँ के लोगों ने अच्छा ट्रीट किया, उन्होंने कहा कि इस गांव में सूखा आ जाए, कुछ हो जाए, तुम लोग सब। तो किसी ने पूछा कि ऐसा कि आपने अच्छे लोगों को श्राप दे दिया और खराब लोगों को वरदान दिया? तो गुरु नानक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सारे अच्छे जो लोग हैं ना वो बिखर जाए पूरी दुनिया में, अच्छा ही लेके जाए, और जो गंदे लोग हैं उसी गांव में मरे, अपनी खराबी को वहीं पे लोकल रहे। तो इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली बट इन अ वे इंडिया के साथ भी हुआ, इंडिया के इमिग्रेशन प्रमोट हो गया, स्मार्टेस्ट लोग पूरी दुनिया में चले गए, और उसके बाद वापस फिर दे आर कमिंग बैक टू गिव ऑल द लर्निंग नॉलेज। तो एक फ्रीबीज पे आ जाते हैं। अभी बहुत सारा डोनेशन ड्राइव चल रहा है, लोगों को हेल्प किया जा रहा है, या बोला जा रहा है कि हेल्प किया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे भी दे रहे हैं, उससे उनको खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बहुत सारी चीजें दिया जा रहा है। सो ये भी कहीं ना कहीं isn't that also creating or going to create problem, like giving meal just for free to people? Mr. Neeraj, you want to say something here? Yes, please. yes. So आज ही का एग्जांपल मैं लूंगा। आज क्या हुआ कि ये जो थर्ड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे जो वाइन शॉप्स वगैरह हैं वो सब ओपन हो गई हैं दिल्ली में। तो सुबह से ही हाँ, हरियाणा में, गुड़गांव में नहीं हुई है, उनका कुछ इशू चल रहा है, दे वांट टू इंक्रीज सम टैक्स कोविड के नाम पे, तो आज स्टार्ट नहीं हुआ, तो सब लोग देखते रह गए। सुबह सब तैयार बैठे थे, बट एनी हाउ दिल्ली में शुरू हुआ, तो सुबह से ही मतलब अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग न्यूज आना स्टार्ट हो गया, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो मोस्टली जो उनमें जैसे वीडियोस में सब दिखा रहे थे, मैक्सिमम मतलब 80% लोग गरीब लोग खड़े हुए थे, और ये वही लोग हैं जो एमसीडी स्कूल्स में अभी राशन बंटता है तो वहां पे भी जाके फ्री के लिए खड़े होते हैं। मतलब फैमिली का जब पेट भरना है तो फ्री में भरना है, लेकिन जब शराब पीनी है तो वो बेशक गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा के आपसे पैसा ले रही है, तो वो पीनी है, अपने पैसे लगा के पीनी है। तो ये फ्री का मतलब ये समझ नहीं आता है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेके शराब के नाम पे, उसी के नाम पे आपको फिर फ्री में राशन दे रही है उसी पैसे से, बट स्टिल लोग हैप्पी हैं और दोनों तरह की लाइन में खड़े होना पसंद करते हैं। नहीं, ये ना जो complex than what you just said. I think we can discuss more on this. I'm not very sure exactly क्या है, but देखिए, I think it's also people's mindset that जो फ्री में मिल रहा है उसको लेते जाओ, और जो फ्री में नहीं मिल रहा है obviously उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब चाहेंगे तो लोग, I mean somehow एक चीज मुझे दिखता है कि people want everything for free. I mean if everything is given for free, especially services, they want it. I mean they are like quite happy. Okay, this, like I will hold the thing. Yes, Mr. Hari, what do you have to say about this Yeah, general DNA problem? Yeah, no, just I want to add, इसमें एक और चीज हो गया अभी कि आप फ्री में एक चीज दो तो पब्लिक people will say मुझे दो चाहिए अब, means I want two. You give one thing for free, he will say I want two. दो तो बोलेंगे चार क्यों नहीं? So this is a DNA problem or a mentality problem, जो भी है। So discuss करते हैं। I think it's a very serious problem. और ऐसा भी होगा कि जैसे let's say one person is getting one bread, right? So that person will bring all the family members so that each member would get one bread, so that they can save the money buying the bread and use that money for something else. Liquor can be one example, but not everybody might be doing that only. But that is also one of the example. I don't know. I mean, try to understand. अतुल सर, आप बताइए कुछ क्या यहाँ पे हो रहा है? ये जो फ्री जो है ना, तो फ्री जो एक नशा होता है। हम लोग को ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा था, राइट? पूरी दुनिया को नदी पानी सब कुछ ज्यादा जो पूरा नेचर जो है फ्री में मिलता है। तो हम लोगों ने बहुत, तो इस पे तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स वीडियोज आ रहे हैं। तो हमने पानी को पॉल्यूट कर दिया, नदी को, समुद्र को, हवा को, सबको पॉल्यूट कर दिया। क्योंकि मेरे एक सीनियर ने मुझे, मेरे क्लासमेट ने मुझे ये बात बोला था कि सोशल वर्क रिलेटेड, क्या तुम फ्री में बहुत कुछ करते हो ना, तो उसके चलते तो गवर्नमेंट के भी लोग, चाहे तुम्हारे नीतीश कुमार हो, चाहे जो भी हो, वैल्यू नहीं करते, इवन दो यू हैव। एंड हम लोग जो है, व्हेन शी वाज पार्ट ऑफ IFC, मतलब वर्ल्ड बैंक,
हम लोग जब जाते हैं तो अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ की पॉवर्टी को देखने के लिए भी तो हम लोग 7 स्टार होटल में जाते हैं, फर्स्ट क्लास फ्लाइट से जाते हैं, बहुत अच्छे में, और हम लोग पैसा भी लेते हैं। हम लोग मतलब पैसा उनसे नहीं, गरीबों से नहीं, बट वी गेट पेड वेल। मतलब कि मैकिंजी और बीसीजी हो, चाहे आप वर्ल्ड बैंक, आई मॉनिटरी फंड, तो वी गेट पेड वेरी वेल, बट बिकॉज वी चार्ज ए लॉट, तो हमारी बात गवर्नमेंट भी सुनती है। मैकिंजी को एडवाइस दे रहा है गवर्नमेंट को सारा काम, तो मैकिंजी को बहुत पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को एक अच्छा रिपोर्ट मिलता है, और अच्छे लोग भी, स्मार्ट लोग, काम हो जाता है। लेकिन उनकी वैल्यू ज्यादा करते हैं क्योंकि वो लोग पैसा चार्ज करते हैं, प्रीमियम है। बट आप फ्री में करते हो, बहुत सारे लोग सोशल वर्क के नाम पे फ्री में करते हो, उसको उतना वैल्यू नहीं मिलता है। सिमिलरली ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें कि हम लोग को फ्री में सब कुछ मिल गया, तो वी स्टार्टेड नॉट वैल्यूइंग द थिंग्स व्हिच रियली मैटर। तो अब कोरोना का पॉजिटिव साइड में ये देखता हूँ कि लोगों को फिर से रियलाइज होने लगा थोड़ा, स्पेशली यंग जनरेशन, और बहुत सारे लोगों ने अब देखा है कि कितने स्काईज आर स्टार्टेड लुकिंग क्लीन अगेन, लोगों को फिर से तारे दिखने लगे हैं, अब दिल्ली हो या पूरी दुनिया में। तो अब लोगों को थोड़ा सा कॉन्सियसनेस इंक्रीज हुआ कि हमें प्लैनेट अर्थ अपना ही है, माँ है, जो भी है, अब हमें भी अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड लोगों के बीच में ये जो गिविंग और शेयरिंग का कल्चर थोड़ा बढ़ा है कोरोना के टाइम में। पीपल हैव रियलाइज्ड कि हम लोग एट द एंड ऑफ इट वी आर ऑल वन फैमिली। चाइना में कोरोना आता है और पूरी दुनिया आज शट डाउन हो गई। तो लोगों के बीच में जो हम लोग थ्योरी पढ़ते थे ना कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली या वसुधैव कुटुंबकम वगैरह, अब लोगों को थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि फील होने लगा बिकॉज ऑफ कोरोना। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ डार्क साइड्स आल्सो, बहुत लोगों ने इसका एडवांटेज उठाया होगा, उठा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में थोड़ा काफी पॉजिटिव चेंज मैंने नोटिस किया। ठीक है, इंटेंशन वाइज तो ठीक है। आई थिंक पीपल आर डोनेटिंग, पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प, एंड बिकॉज ऑफ दिस गुड इंटेंशन सम पीपल आर आल्सो टेकिंग एडवांटेज। तो इसमें क्या हो रहा है ना, देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हैपनिंग। आई थिंक सिंस दिस थिंग स्टार्टेड आई माइट हैव गॉट लाइक 100 मैसेजेस विद 100 बैंक अकाउंट्स और 100 लिंक्स की यहाँ भी कर दो डोनेट, 50 रुपए कर दो, 1 रुपए कर दो, 100 रुपए कर दो, क्या जाएगा क्या जाएगा क्या जाएगा। बट एक डोनेशन पे मेरा एक स्टैंड है कि इफ आई जस्ट डोनेट 1 रुपी to each person of this India only, let's say 130, so I donate 130 crore, right? और 130 crore सबका देने का कैपेसिटी तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे एक I don't know where to draw the line कि कहाँ we should help, we should not help। तो एक चीज मैंने ये सोचा कि I should help my near and dear ones, you know, with whom I am related directly or indirectly। वहां पे ही मैं हेल्प कर दूं अगर अपने हेलो बना के, तो उतना ही काफी है। I mean, anybody wants to say, maybe Brajesh can, he has done so much for people, or Ankit, yeah, Ankit, yes, please, Yeah. raise your hand, yes, please, Ankit, then Brajesh can also talk. विशाल, आपने जो बोला कि I know you personally from the last few years, and the way you contribute towards the youth is, you know, it's simply I haven't seen someone so passionate who wants to change the society. So keeping this thing in mind, we went to Singapore together, and if you have noticed, the time when Singapore got freedom, it was I guess 50 years back, and the condition they were in was quite pathetic than what we were having the situation in India. But still, if you see the economy there, why it grew several folds than India, that small island. It's just because no one has thought ki, if we help, India will never going to benefit if you give it in monetary. शुरू से बहुत लोगों ने डोनेशन दिया, अगर डोनेशन से अगर इंडिया सुधरता तो अभी तक सुधर जाता। The thing is, you need to make the change. I know government is doing a lot, but still there's need to be done in terms of providing better infrastructure or education, because it's not easy. We are saying ki, the government can do better, but changing 130 1 point, I don't know, whatever the population India has, it's a lot. Absolutely, and changing that is not easy, and especially so मेरा एक solution रहेगा to, if you want to do something, do it in a grassroots level, like many people also in this group are doing straight away. They are contributing to the education sector. So I guess this is the only change which we need in terms of India to get benefited the society, because I've seen a lot of people from all over the world coming to India volunteering. That's the reason, that's the reason, and that may be the thing which can make India do better.
to improve the condition of the poor people by not giving them monetary, by teaching them, Educating them. by educating them, by feeding them food. If you give them money and say just go and have it, you'll find those people at the liquor shop next day buying liquors. You know, this is the fact. If you want to help them, feed them. If you want to help them, educate them, rather than giving them monetary benefits. Because you know the kind of mentality the Indian people have, especially the poor people or the people from the, you know, the humble background, like those who are like, who cannot afford to have a 2-day meal. So it's never going to happen if we contribute just the monetary. Never, never, ever do that. It's my personal, you know, I've seen this. I've volunteered in many NGOs, especially French. I've had a lot of French people even in the city right now. They have stuck due to the COVID, but whatever they are doing, leaving their families and friends beside, coming here, helping the poor, the way they do is absolutely, Vishal. I'm inviting you to the NGO. You should be there and you see how the people are helping the poor, you know, the poor people of the India. You know, they are actually, and you know why? Because even if you make the education free to the children of the slums, they will prefer to get the garbage thing done if they are doing the garbaging, and you know, if they are doing some you know, third world job, like what do you say, polish jute polish karna ya fir kachre uthana, they will do that. Even if you order, even if you you know, invite them for the education thing, what they have done, उनका एक मेरे को बहुत अच्छा मॉडल लगा. सो वो क्या करते हैं कि आप 3-4 लेवल रखा. एंटरप्रेन्योरशिप लेवल इज द हाईएस्ट, ऑटोनॉमी स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप. जब भी कोई वो लोग लाते हैं स्लम्स के बच्चों को, तो फर्स्ट ऑटोनॉमी स्टेप होता है. तो उसमें दे इवन प्रोवाइड सब्सिडी, मतलब आप आओ, पढ़ो, और आप अगर अटेंडेंस डेली आप आओगे तो डेली आपको पैसे भी मिलेंगे, और आपको सीखने को भी हम लोग देंगे. सो वो मॉनिटरी बेनिफिट देने के बाद लोग आते हैं सीखने के लिए, फ्री में सीखते भी हैं, और ये लोग फ्रेंच लोग पैसे भी देते हैं इंडियंस को, इंडियन के जो ये जो चिल्ड्रंस हैं स्लम्स वाले, उनको. तो बाय दिस वे आई हैव सीन लॉट ऑफ यूथ्स गेटिंग जॉब एंड दे आर डूइंग रियली वेल. मेट्रो कैश एंड कैरी में कितने जन को जॉब मिला, कितने जन को रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला है, ऑल द पीपल कमिंग फ्रॉम द स्लम्स. सो ये उनका जो मॉडल लगा, मैंने आज तक ऐसा एनजीओ नहीं देखा कि मतलब ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड लाइफ प्रोजेक्ट फॉर यूथ, LP4Y. Anyone can search you know, online, LP4Y, 4 as in number 4. So they are doing impeccable job. अतुल जी, आप काफी इसमें हैं ये सारी चीजों में, तो I'll also invite you to kindly have a look, and if we can do something for them. I do a lot, so I volunteer myself. I promote the entrepreneurship. थोड़ा सा जो है entrepreneurship का बच्चों में थोड़ा भरता हूँ कि, you know, rather than going for the jobs, you can start off your own. No, it's never mind. You don't have money, it's fine. If you have an idea which is solving a problem in the society, you can run a business. So entrepreneurship. Absolutely, Ankit. And Ankit, I would also like to add one message which I have been doing while in that program, which myself and Abhishek Janta have been planning the entrepreneurship course. The message I've been sharing is कि recession, when the economy is in trouble, that's the best time to be entrepreneur. उसके लिए मैंने कुछ एक research report भी लोगों को WhatsApp पे भेजा है. मैंने देखा, right. This is the best time to be an entrepreneur. क्योंकि what is there to lose? बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो what is there to lose? Try out few things. और जो भी बड़ी-बड़ी जो success stories हुई हैं, they all have started in the recession time when the economy was overall not doing well. So it's a good opportunity to start something. And the other thing, what I do is I don't have much money. I'm a poor, really poor guy, honestly. But what you are I a poor have is, American citizen. I can't believe that fact, sir. I can't buy American, that, please. Since you mentioned American citizen, San Francisco में लोग homeless हैं, गरीब drug addict, रोड पे पड़े हुए हैं हजारों लाखों की संख्या में. तो यहाँ पे पॉवर्टी का प्रॉब्लम इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा है in a way. But you are not one of them. I'm not one of them, definitely. I'm not homeless. But यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे disparity ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. कि there is a Jeff Bezos with $1 trillion and Bill Gates with many billions, but there is a large part of American society
that has happened in the last 20 years, and that's the big problem जिसके चलते अमेरिका में प्रॉब्लम चल रहा है. इंडिया टाइप से यहाँ भी हर दिन आए दिन खून खराबा गोलीबारी तो चल रहा है, because many of the lower middle class people are really struggling to survive, both really in trouble. I'm not one of them, fortunately, but there are a lot of people who are homeless. They don't have food to eat. यहाँ पे food kitchens वगैरह चलते हैं बहुत सारे सोशल में, but drug addiction का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल गया यहाँ पे कैलिफोर्निया में भी और ओवरऑल यूएस में. ओपियोइड क्राइसिस बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेकर और लोगों को आदत लग जाती है, एंड देन दे गेट एडिक्टेड टू इट, एंड देन दे जैसे इंडिया में बहुत सारे पुअर पार्ट्स में होता है ना कि शराब पिला के बहुत सारे पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत लेते थे. यहाँ पे ड्रग्स इज अ क्राइसिस, एंड ड्रग्स नॉट इन ड्रग्स पेन किलर्स. आप नॉर्मली people are using painkillers as a drug, and it's a huge crisis. I'll share a few links so that you get an idea. But the size of the problem in US is bigger than any other part. I mean, especially US is smaller than India in population, but in terms of percentage of people who are addicted with drugs and homelessness, all the problem is really big. And I think even Europe में भी मैं recently गया था last साल चाचा, वहाँ भी problems are really bad. वहाँ भी काफी जगह पे, लंदन में तो बहुत ही खराब स्थिति है. Many other parts of the developed world, they are really struggling. वहाँ पे ये drugs का, homelessness का, and all the things we read in the movies, reality है. People are really struggling. एक ही दो country अच्छे examples हैं. Norway is doing well, and Sweden and Denmark. But other than that, if you see much of France and England, they are really struggling. Mm-hmm. Yes, Brijesh, then Neeraj can speak. Brijesh, what's your take on donation thing? So I made a lot of points in this conversation. I'll just walk through it. We started with people looking at India for inspiration. So अभी जैसे भैया ने बताया कि यूएस में ये सब दिक्कतें हैं, लोगों के पास संसाधन, जिसके पास संसाधन है उसका उपयोग करने की बुद्धि नहीं है. मतलब hello. Yeah. I'm here. So then he also mentioned, and India में we have a lot of history, and we have lot of, मतलब एक theory पढ़ना एक चीज़ है और practically जाके चीज़ें देखना एक चीज़ है. So in last 3 years I started traveling India and like observing things. जैसे हम्पी वाले area में there is a architectural structures are there. People were living, started studying what is the और बीच की पढ़ाई व्यवस्था में लोग मतलब informed हैं, like they are skilled but they are just like a skilled labor. So Atul Bhaiya mentioned about an open library where library is accessible. People get the wider exposure of knowledge, then they use their own consciousness how to apply that knowledge. So this having a wider exposure makes people humble enough. एक निस्वार्थ भावना अंदर जागती है कि हम क्यों कर रहे हैं, because we know this is the right thing rather than मेरा क्या मुझे क्या. That bhavna desires when comes up when we are just fighting for struggle, like मेरा क्या मुझे क्या, मेरे पापा ने मेरे को दहेज में क्या दिया, मेरे मौसा ने दहेज में क्या. भाई तुमने क्या किया उनके लिए, तुमने निस्वार्थ भावना से क्या किया. सब भी होते ना कि कुछ किया तो इससे मेरा ये तो उसमें एक या तो विशियस इंटरेस्ट जुड़ा रहता है. सो वो जो कल्चर बिल्ड करने की हैबिट है, सो वी स्टार्टेड, I was part of Niti Aayog, so we started working on Atal Tinkering Labs. School में जाके छोटे maker space establish करना. So now we differentiated in a parallel way. We call it maker community. एक कहीं पे भी जगह में एक छोटा सा कमरा होता है. You have small tools, थोड़ा सा internet है, एक resources है, and we say, dude, this is a common resource. आपको अगर कोई यूज करना आइए, आप जो भी संसाधन यूज करना है, यू कैन यूज इट, बट यू हैव टू पे फॉर द ऑपरेशनल कॉस्ट. 3D प्रिंटर रखा हुआ है, अगर 1 घंटा प्रिंट करना है तो 1 घंटा प्रिंट करने का 100 रुपीज चार्ज लगता है, विच इज द ऑपरेशनल कॉस्ट. लेकिन आपका इमेजिनेशन कम्स इनटू एक्चुअल एग्जीक्यूशन विद इन 1 डे. सो दोज काइंड ऑफ कम्युनिटी स्पेस वी कॉल इट मेकर स्पेस. एंड देन एक होता है ना प्रतिस्पर्धा की भावना हम बनाए रखते हैं. अगर दो किसी को मतलब वो नेचर है टकराव वाला, then we create a festival.
मेकर फेस्टिवल और इनोवेशन फेस्टिवल। अभी हमने covid19.in करके एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करा है। हैकाथॉन शब्द का मतलब होता है कि 3 दिन का समय होता है। अभी लोग क्या होता है कि डॉक्टर के साथ जुड़ा रहता है, इंजीनियर अपनी दुनिया में मग्न रहता है, आईटी वाला अपनी साइड रहता है, एग्रीकल्चर वाला अपनी साइड रहता है। तो हैकाथॉन में वी इनवाइट people with, first is they should be domain expert. They can be a chartered accountant, they can be from non-engineering, they can be from agriculture, and they sit and we focus on one subject. For this scenario we took covid, कि covid में कौन क्या क्या कर सकते हैं, and people came with amazing solution. जैसे एक प्रोजेक्ट था जिसमें था कि they were using single board computer और उसके आगे कैमरा लगा के they were doing the surveillance और AI को यूज करके, दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड ऑन बोर्ड AI, कि अगर लोग इकट्ठा हैं तो नियरेस्ट अथॉरिटी को जस्ट इन्फॉर्म कर दो, दैट्स इट, एंड दैट एंटायर सिस्टम इज सेल्फ पावर्ड. सो क्रिएटिंग दैट डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम, मेकर कम्युनिटी, जहाँ पे लोग आ रहे हैं ये सोच के नहीं आ रहे कि सुबह 6 बज गया स्कूल जाना है, 2 बज गया घर आना है, ठीक है, वो ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका मन करता है जाने का. और मेकर कल्चर में ये होता है कि उम्र की मर्यादा के बाद भी लोग जा सकते हैं, कि कोई है उसकी इच्छा है वो वहाँ पे उस जगह पे हम इंटरेस्ट को फॉलो अप कर लें. तो वहीं से कुछ छोटे छोटे इनोवेशंस निकल के आए थे और ये सब चीज़ें, और ये इसी में से एक जैसे बाहर से आइडिया आया था कि बाहर बच्चे नींबू पानी का स्टॉल लगाते हैं, वो बोलते हैं उसको लेमनेड स्टैंड. तो बचपन में उनको आदत लगा देते हैं कि तो तुम सोचो कि अगर तुमको जिस रास्ते पे तुम नींबू पानी का ठेला लगा, एक स्टैंड लगा रहे हो, कितने लोग वॉक कर रहे हैं, कितना कप चाहिए होगा, कितना पानी चाहिए होगा, कितना बर्फ चाहिए होगा, तो एक ग्लास का कॉस्ट कितना निकलेगा, ठीक है, और कितना देर तुमको खड़ा रखना है, तो अगर तुमको अपना खुद का कॉस्टिंग निकालना है तो कैसे निकलेगा. यही चीज़ हम मेकर कम्युनिटी में डालते हैं कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे एग्रीकल्चर का सेंसर बनाना है जिससे मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, देन वी से कि ठीक है, दिस इज योर स्कोप ऑफ कंसर्न, but let's discuss what is your scope of capability or what is your scope of effect influence, कि आप कितना कर सकते हो. आप अपनी देखो कि मेरे पास क्या संसाधन अवेलेबल है, then we start working on कि how can we utilize the best from our existing resource. So maker culture and maker movement is something which we promote in our campus 365. और वहाँ पे we have libraries are always free for people to read, but they have to register, and the thing is they have to pay their own fees. We charge 7 rupees per month. They should earn at least 7 rupees per month. कुछ इतना मेहनत करके earn करो. मांगना आसान है, भीख मांगना आसान है, कमाने में मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट 7 रुपए तो कमाओ. So that's Brajesh, this maker movement, this separate maker movement beside the one which ASA was supporting, or is the same one? maker, like it's many people doing makers movement. I'm saying, but ASA ने भी support किया था, इसलिए पूछ रहा था. like that thing is Maker Fest. The ASHA which started, that was Gujarati guys, those who are mostly in Ahmedabad. The Maker is like almost like some central government call it Niti Aayog call it Utter Innovation Mission, or they call it Utter Tinkering Labs. So they name it a different way. हाँ, मेकर मूवमेंट इज ग्लोबल मूवमेंट, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग तरीके से किया, राइट? करेक्ट. उन सब में ये सब चीजें इंक्लूडेड है कि फर्स्ट थिंग हाउ टू चेक वेदर सम इंफॉर्मेशन इज फेक इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन. सो हाउ टू डू ऑथेंटिसिटी चेक, दैट्स पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ दिस मेकर कल्चर. कि किसी ने आप कहीं सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते, आप अपना रिसर्च पहले खुद करो, और उसके बाद सेकंड पार्ट होता है कि आप प्रॉब्लम समझो कि आप क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना चाहते हो, उसके हिस्टोरिकल वे में लोगों ने कैसे कैसे किया. एंड द बेस्ट पार्ट इज सिंस एवरीवन अंडरस्टैंड द मेकर कल्चर, सो इट ब्रेक्स द बैरियर. तो किसी दूसरी भाषा का या किसी दूसरे प्रांत का भी या किसी दूसरे शहर का भी कोई बंदा है तो एक कम्युनिटी है, लोग ही रह रहे हैं, लोगों की मूलभूत आवश्यकता होती है, किसी ने वहाँ सॉल्व किया है तो हम लोग यहाँ कर लेंगे. तो मेकर कल्चर में वी हैव अ लेजर कटर, 3D प्रिंटर, लेथ मशीन्स, उससे छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, पंपिंग सॉल्यूशंस एंड ऑल. एक चीज़ जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि टॉप 1% पीपल ओनली इन US आर हैविंग अ प्रॉपर लाइफ, rest of them are struggling.
तो मैं उस विषय पे एक छोटा सा, पता नहीं मेरे को बहुत अजीब लगता है कि इंडिया में वी हैव सो मेनी पॉपुलेशन, वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स, पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक है, पैंटीन हो गया, ये हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 61% स्टेक फ्रांस के किसी इंडिविजुअल फैमिली के पास है। हमारी जो जितनी भी, देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में जो आईटीसी बोलते हैं, आईटीसी इतना फेमस है, आईटीसी का ये वो, इट इज बेसिकली इंडियन टोबैको कंपनी, टोबैको कंपनी है, उसके आगे ना उसने बस नाम इंडिया लगा दिया। यही जब टोबैको कंपनी पाकिस्तान जाती है तो वहाँ पे बन जाती है पीटीसी, और जब श्रीलंका जाती है वहाँ बन जाती है सीटीसी। और लोगों के भावनाओं से ये लोग बस खिलवाड़ कर लें, कोई इमोशनल एड रन कर दिया, कुछ कर दिया, ये जता दिया कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हम 1 रुपया दान देंगे। भाई दान वान कुछ नहीं दे रहे ये लोग, ये बेवकूफ बना रहे हैं और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यूनिलीवर इज द कोर कंपनी। इंडिया में आती हो तो बोलती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, पता नहीं बस हिंदुस्तान लगा दो। हाँ मतलब कुछ भी। तो मैं ये सब चीजें आजकल स्टडी कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने बहुत क्लियर फोकस बना रखा है। लोगों को इनोवेशन और क्रिएटिविटी की लत लगा दो, मेकर स्पेस में ले जाके उनको छोड़ दो, और साइंस के प्रोजेक्ट ले जाके उनको अचंभा कर दो और उनको सोचने पे मजबूर कर दो, ये कैसे किया। एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस के, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मैं करके बच्चों को छोड़ के उनको चस्ता लगा के मैं हट जाता हूँ। फिर खुद सवाल पूछते हैं, अरे भैया ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, अरे गेम, फिर उनको बताओ गेम बनाना है, ये लोग खुद से बना लो, कंप्यूटर तोड़ना है, ये लोग तोड़ लो, क्या हो जाएगा, 5 साल बाद तो वैसे भी इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। The important thing is to culture the sense, to culture and to nurture the joy of making। तो कुछ बनाने से पहले ना आप समस्या समझते हो, समस्या का कितना मतलब कितने दायरे पे वो उसका इम्पैक्ट है, उसका स्कोप ऑफ इम्पैक्ट कितना है वो समझते हो। फिर आप लोगों की कैपेसिटी समझते हो कि लोगों की कैपेसिटी क्या है, देन यू कम अप विद सिंपल सॉल्यूशंस। जैसे अभी कोविड के चक्कर में फेस मास्क खत्म हो रहे थे, तो हम लोगों ने बोला यार चलो फेस शील्ड बनाते हैं। तो शुरू में था कि चलो 3D प्रिंटर से प्रिंट करके बनाएंगे, तो लगा यार वो सॉल्यूशन नहीं है, तो लोगों ने सिंपल सा फिर एक जो फाइल के आगे जो ट्रांसपेरेंट गत्ता शीट होता है उसी को काटा, और गत्ता काटा, उसी में जुगाड़ करके बना दिया। इट्स वर्किंग, लाइक इवन वी आर सप्लाइंग इट टू दिल्ली मिनिस्ट्री एंड दे आर हैप्पी विद इट। पीपल नीड सिंपल सॉल्यूशन। और जितना अभी तो मतलब जितना हमारा लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं ना IAS की तैयारी, IPS की तैयारी, उतना अगर वो एक बिजनेस स्ट्रक्चर समझने में करें तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं एक बार ना अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। मैं कल ही एक वो देख रहा था, इंडियन गवर्नमेंट की मैं वो देख रहा, इनके टेंडर निकलते थे 50-60 टेंडर। मैं खुद एयरफोर्स, पापा मेरे एयरफोर्स में है, तो मैं बचपन से एयरफोर्स में नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन मैं बहुत स्टडी करता हूँ। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जितना भी गवर्नमेंट यूनिट है उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनका राशन कंजम्पशन होगा, व्हाई नॉट टू सप्लाई लोकली, एंड दे आर ओपनली गिविंग यू क्लियर मनी फॉर दैट। उनका बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिससे हम ले रहे हैं वो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर कर लो भाई, LLP रजिस्टर कर लो, और कोई दिक्कत है तो उसकी छोटी बहुत ट्रेनिंग कर दी, और ये सब टेंडर ओपन है। अभी एक और था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, इंडियन मेटलर्जी डिपार्टमेंट, IMD आता है। उसका काम होता है कि ऑल अक्रॉस इंडिया वेदर फॉरकास्टिंग करना। और मुझे बहुत शौक लगा, एक नोवा करके वेबसाइट है, वहां से हम लोग सारा डेटा कॉपी करते हैं। हम 15 दिन पहले वेदर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इतना एडवांस हो चुका है। बेसिकली ये लोग गुब्बारे उड़ाते हैं हवा में, हर डेली इंडिया में जितने भी वेदर स्टेशन है वो एक एक गुब्बारा उड़ाते हैं, और गुब्बारा जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है वो विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रिलेटिव टेम्परेचर वो नापता रहता है। और बेसिकली और वो डाटा ओपन है और अवेलेबल है, वो वर्ल्ड वाइड होता है। तो और उसको आपको एक मैथमेटिकल कंप्यूटर पे सिमुलेट करके वो सीधा बता देगा कि यहाँ पे बारिश होगी नहीं होगी, ओले गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, वो सीधा एक मैथमेटिकल फंक्शन सीधा बता देता। और ये आज से 9 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और कोई इसको यूज नहीं कर रहा। तो अगर कोई सर्च करे IMD का, या AWS होता है, ऑटोमेटिक वेदर प्रिडिक्शन, AWP, सो ये सब चीजें हैं। सो आई ट्राई टू इसको, आई थिंक वी कैन डू how to start a startup
series, we and we can go I for think, talk we about can problem make we solution. can go for like maker community, how to make something Yeah, I mean, and how to yeah, scale sure. up something. वहाँ पे we will invite our senior guest as a speaker. अगर Sure. senior guest हमारे सीधा आ जाएंगे, लोग कदर करना बंद कर देंगे. If we are Mhm. like we are inviting them as a guest speaker to share their experience on a specific niche, then it will have a more impact. ठीक है, उसको So एक अलग I session have में many करते हैं. names. So I have many names to suggest. अगर बुलाना चाहते हैं किसी senior guest को as a speaker in Maker Fest or anything. Entrepreneurship के लिए तो I'm already working with Abhishek Janta for that entrepreneurship thing. So initially we're just planning a 2-day, 2-hour thing, some more of informational thing, but that also will be paid a small amount. But we're planning to have a 8 weeks course on let's say boot camp for startups. So how do you start a startup? Because I've been participating in so many of these entrepreneur things. That's what I've dedicated my life to. So I will, anybody who's interested in that, please do that. I've shared the links also in the group. We are focusing on Bihar itself for the bootcamp. No, so Abhi, this one we're doing is through Zoom, so it doesn't matter anywhere in the world. And the 8-week bootcamp also, we will initially launch it through Zoom globally, but then we'll also have a local events as well. So Bihar में भी करेंगे, जहाँ we have some local person to manage it. जैसे कि you want to do it in Rajesh in Bihar, we will support you. You are there, and other he's not there today, Abhishek Janta. So between you and Abhishek and locally, and we can have guest lectures through Zoom from anywhere in the world. But mainly the program will be local. बिहार में करेंगे, हैदराबाद में करेंगे, जहाँ हमारे पास थोड़ा कनेक्शन है या जुगाड़ है. Sure. Yes, Mr. Neeraj, you have been raising hand. Hello. Yeah, so I just want to add a couple of points here. Like हमारी बात हो रही थी कि एक शायद अंकित ने बोला था कि फ्रेंच एनजीओ है, पैसे देता है, बुलाता है, तब लोग आगे सीखते हैं. My wife is working with the Delhi government as a teacher, और वो अभी जहाँ posted है वो slum area में ही है, बिल्कुल एकदम गरीब वाला, जो one of the biggest slum in South Delhi. तो वहाँ पे मतलब मुझे नॉलेज है जिस तरह से स्कूल फंक्शन करते हैं. गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए. इतने फंड्स आते हैं, अलग अलग तरह के माइनॉरिटी फंड अलग आते हैं, और फिर जैसे इंडिया में कास्ट बेस्ड जो चलता है, शेड्यूल कास्ट और वो सब, उनके लिए इतना फंड्स आते हैं. कभी शूज आ रहे हैं, किताबें आ रही हैं, बैग्स आ रहे हैं, उसके बाद इनकी स्कूल यूनिफॉर्म, सब कुछ गवर्नमेंट देती है. और उसके अलावा हर बच्चे को, वो प्राइमरी स्कूल में है तो हर बच्चे को, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को ऑलमोस्ट पर ईयर 4,000 to 5,000 कैश भी मिलता है. ये सब इतना गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हालांकि होता है वो एक दूसरे तरीके से कि वो कास्ट बेस्ड होता है, रिलीजन बेस्ड होता है. कुछ बच्चे उसमें 10-12% लोग रह भी जाते हैं. हालांकि स्कूल में आने वाले सब बच्चे रिक्शा और रेडी वालों के ही होते हैं, लेकिन उनमें भी फिर वो पहले दिन से वो भावना भर दी जाती है कि आप इस कास्ट के हो, आप इस कास्ट के हो, और इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये इस कास्ट का है. तो बच्चे अलग से बैठ के देखते भी रहते हैं कि सब में बट रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. पर गवर्नमेंट कर रही है, करती है, और फिर भी लोग नहीं आते हैं. एंड वन ऑफ द थिंग इज जो ये मिड डे मील का जो सिस्टम शुरू हुआ था, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेम थिंग कि एटलीस्ट अच्छा खाना मिलेगा. बच्चे को आप स्कूल भेजिए, गवर्नमेंट उसको पौष्टिक आहार देगी, वो खाएगा और कुछ ना कुछ सीख के आएगा. बट स्टिल थिंग्स आर देयर. या That's one point. तो मिड डे मील पे बोलना चाहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट, मैं बहुत सारे नॉन प्रॉफिट के साथ काम करता हूँ. तो कुछ महीने पहले सिलिकॉन वैली में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, मतलब कि डिनर पे वन ऑफ द इन्फोसिस के जो क्या कहते हैं हेड ऑफ एचआर एंड एवरीथिंग, उन्होंने मुझे वही आए हुए थे. क्या नाम है उनका, हेड ऑफ एचआर थे, सीएफओ भी थे. तो वो जा रहे थे उस इवेंट में, तो मैं भी गया था साथ में. तो उस इवेंट में क्या था कि मोहनदास पाई, राइट? हाँ, मोहनदास पाई. हाँ, तो मोहनदास पाई से अपना जान पहचान है, व्हाट्सएप पे दोस्त हैं, जवाब देते. तो बोले कि उसमें वो जा रहे हैं, तो मैं भी चला गया. तो वहां पे देखा अमेजिंग, मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा काम हो रहा है, और आइडिया भी नहीं था. तो इंडिया की ज्यादातर जो मिड डे स्कीम्स जो स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट 50% स्पॉन्सर करती है ज्यादातर स्टेट्स में, एंड द अदर 50% इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस फाउंडेशन. क्या नाम है उसका, बोल रहा हूँ,
द हु इज हू ऑफ सिलिकॉन वैली, सारी बड़ी कंपनीज के उसमें Squad founder. हाँ Right. नाम मिस कर रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत बड़े, मैं भेजूं। अक्षय पात्रा। तो अक्षय पात्रा जो काम कर रहे हैं मिड डे मील्स के लिए, और अक्षय पात्रा के मैं उस चीज का रेफर करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें आकर स्पीच दिया, स्टूडेंट्स ने भी दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था स्कूल्स की अटेंडेंस बढ़ गई बिकॉज अक्षय पात्रा का मिड डे मील मिलता था, अच्छा खाना, टेस्टी खाना, नॉट सरकारी टाइप का खाना। उनका जो किचन चलता है बैंगलोर में और जहाँ अक्रॉस इंडिया, तो खाना बहुत हाई क्वालिटी फूड मिलता है लोगों को। उसके चलते स्कूल्स का अटेंडेंस बढ़ गया। और बहुत सारे बच्चों ने जो स्टोरी सुनाई थी ना, मैं उसका वीडियो भी शेयर करूंगा। स्टोरी जो सुनाई वो ये था कि आंख में आंसू आ जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे मिड डे मील में जाते थे और करने कुछ खाना बचा लेते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास भी पता है कि खाना नहीं है, तो उनको कोई बहुत अच्छा खाना मिलता था कि अपने पेरेंट्स के लिए या फैमिली के लिए बचा के ले आते थे कि मैं अपनी बहन को खिलाऊंगा। तो अक्षय पात्रा टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कर रही हैं, एंड दे आर डूइंग एट अ रियली बिग स्केल। बट ऑब्वियसली द साइज ऑफ इंडिया इज सो बिग कि कितना भी कर लो, इट्स नॉट इजी। हाँ, दिल्ली में भी वही अक्षय पात्रा फाउंडेशन ही करती है, मेरे वाइफ के स्कूल में भी। और इवन यहाँ पे एक और समस्या क्या है, जैसे पेरेंट्स गांव से उठ के आए हैं, शहर में दिल्ली में आए हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हम दोनों जन अगर मिलके कुछ ना कुछ करेंगे तो थोड़ा बहुत इतना कर पाएंगे कि एक जने से हमारे यहाँ का खर्चा चल जाए और कुछ बचा के गाँव में भेज पाए। तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो दोनों को सुबह सुबह छोड़ के निकल जाते हैं और रात को 7-8 बजे तक आते हैं। तो मेरी वाइफ जैसे अगर फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रही है ना, तो अगर बड़ी बहन है और उसका छोटा भाई 3 साल का है, वो साथ में लेके आती है उसको। मतलब इस तरह की समस्या है कि बड़ी बहन को ही छोटे बच्चे को पालना पड़ रहा है। और मतलब अब उनकी सिचुएशन देख के इतना अजीब सा लगता है। मैं एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इन सब स्लम एरिया में है ना, वो जो गुंडागर्दी वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा रहता है। मेरी स्टार्टिंग में नई नई शादी हुई तो माई वाइफ वाज इन अ बॉय स्कूल, अभी वो गर्ल्स स्कूल में आ गई है। तो वहां पे क्या था कि वो मुझे आगे बताती कि एक क्लास में एक लड़का है, वो बहुत बदमाश है, मतलब उस एरिया के सारे बच्चे उससे डरते हैं और वो सब ये मतलब छोटा मोटा ड्रग्स वगैरह और इनमें और सब में 5th स्टैंडर्ड थे उसके पास उस टाइम पे। तो मैंने उसको बोला, ऐसे ही हम बैठ के एक दिन रात को डिस्कशन कर रहे थे, मैंने उसको बोला कि तुम उसको है ना क्लास का मॉनिटर बना दो। तो उसने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो उसने नेक्स्ट डे जाके उसको बोला कि आज से तुम क्लास के मॉनिटर हो और क्लास में कोई भी शरारत नहीं करेगा, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है और ध्यान से पढ़ना भी है और साथ में बच्चों को भी देखना है। और उसमें इतना मतलब चेंज आ गया उस लड़के में। विद इन 6 मंथ ही वाज टॉपर ऑफ द क्लास। और अब उस स्कूल से गए हुए उसको हो गया 3-4 साल, अभी भी आके वो मिलता है एंड ही इज डूइंग रियली गुड इन स्टडीज। तो ग्रास रूट लेवल पे काम किया जा सकता है, बस थोड़ी सी अलग सोच की जरूरत है। Sure. Yes, Mr. Hari, you have a mic, please. Then Mr. Hello. Kishore can speak. Yes, Mr. Yeah, Hari. I just I was going through with my friend's discussion, Mr. Brajesh. So just wanted to ask, like regarding that weather system. So I want to know whether like this is installed in India, or is it available, like how it is, like what system it is, and if at all that system is there. There is one counter question, since he is a member of Niti Aayog and all. So I would like to ask him a question. Like recently, there were huge floods in Kerala last year. So I just want to understand if we can get all the data 15 days prior. So why such instances Disaster like happened. such Correct. disasters happen? So I want to add in that even in my dad, he's a metallurgist. He's serving in Indian Air Force and specifically in this weather prediction. जो केदारनाथ में जो फ्लड जो सडन फ्लैश फ्लड हुआ था, 7 दिन पहले वार्निंग दी गई थी लोकल गवर्नमेंट को. दे डिडंट लिसन. 3 दिन पहले दोबारा रिपीटेड वार्निंग दी गई. दे स्टिल डिडंट लिसन. देन दिस इवेंट हैपेंड. No, उसके तुरंत बाद ओडिशा में स्टॉर्म आया था. दे लिसन दिस टाइम, तो कैजुअलिटी कम हुई. सो ये वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम लोग बोलते हैं, दैट्स व्हाट आई एम अगेन सेइंग. पीपल विद कैपेबिलिटी, दे डोंट हैव
authority to make decisions. They can just give suggestions. And the people who are in authority, I don't know. I have no comment on No, that part. They are but too slow. the They don't floods want to. that occurred in Kerala were not having any prior intimation from any metallurgical department, I suppose, because there was no such intimation given by Let, metallurgical department in that case. let me explain how the metallurgy works. Mhm. IMD, Indian Metallurgy Department, I visited their office physically, and everyone is Sarkari Babu, typical Sarkari Babu. Unki library mein gaya, they had wonderful books. They didn't allow me to enter their library. I was like, dude, I'm an engineer. I am understanding these stuff. Let me just go into it. So I just, by hook and crook, I took a pass and I just enter. They had wonderful books, जो कि आज से 200 साल पुरानी बुक है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे उस समय वेदर कैसा होता था, उस समय एग्रीकल्चर सिनेरियो कैसा होता था, उस समय की बुक्स हैं, images हैं, snapshots हैं, but still people like they're not. I don't know. I don't want to comment on that part. And then the people with the capability, और फिर वहाँ पे I made few friends who were studying geology very seriously, who are studying the climate very seriously. They are doing PhD and masters. They are like, dude, we have skills. I don't know how to apply my skills in the civilians. Like बाहर आके मैं लोगों को अपनी services कैसे दूं जहाँ पे लोग free में चाहते हैं चीज़. लोगों को सब free की चाहिए. We have the skills and our skills saves life. नहीं, but skills in this case it is highly automized these days. और जहाँ तक मुझे पता है, they use supercomputers also in this हाँ. matter. Yeah, they Let me use explain. supercomputers. Let me explain. So I studied their supercomputer. उनका जो supercomputer architecture है, उन्होंने बाहर से खरीदा है और वो उन्होंने काफी पहले खरीदा था. This is what my exact capabilities. मैंने अपना जो research paper publish किया था, वो supercomputing and parallel processing में किया था. हमारे यहाँ आजकल पिछले 5-6 साल में आ गए ग्राफिक कार्ड. हम मस्त PUBG पे उसको पे गेम खेलते हैं and I'm very big fan of PUBG. अच्छा गेम है. तो उसको खेलने में जो हम ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं बेसिकली वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, रिपीटेटिव कैलकुलेशन करता है कि स्क्रीन का पिक्सल मेरे को कब चेंज करना है, 60 फ्रेम पर सेकंड, 80 फ्रेम पर सेकंड. और यही कैलकुलेशन मेरे को वेदर डेटा पे करना है. जो मेरा गुब्बारा हर स्टेशन पे उड़ता है और वो हर एक आधे किलोमीटर पे हवा में मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ये मेजर करता रहता है. और बेसिक मेरा कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन है, सुपर कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर का भी आर्किटेक्चर देखेंगे तो उन्होंने बेसिकली इंटेल के जेनॉन प्रोसेसर लगा रखे हैं, विच इज बेसिकली अ सीपीयू, और बहुत सारे लगा रखे हैं. और ये सीडैक है पुणे में, वहां पे इनका डिप्लॉयड है, जो ऑल अक्रॉस इंडिया ये लोग यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना एक सुपर कंप्यूटर है that we use for metallurgical like उससे ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी आप नॉर्मल लैपटॉप में एक एनवीडिया ग्राफिक कार्ड आता है वो लगा दीजिए, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हमें ये मॉडल प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है कि सरफेस लेवल पे विंड डायरेक्शन क्या है, और थोड़ी सी अपर लेवल पे क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स के रेजोल्यूशन क्या है, 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रेजोल्यूशंस क्या है, वो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 5 से 6 इक्वेशंस हैं, उनको कैलकुलेट करना होता है. और वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर पे, जो नॉर्मल सा सिस्टम है, और उस पर बस 2 ग्राफिक कार्ड डाल दिए, आराम से आप कर सकते हैं. और यही मतलब डुएबल चीज है, और इसमें कोई नया नहीं है. बस यही कि लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग झेल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं. ये मतलब ओपन सोर्स है, चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, बस थोड़े केपेबल बंदे जो कि मतलब इस समस्या के प्रति थोड़े संवेदनशील है, वो थोड़ा सा इकट्ठा होकर थोड़ा सा बात कर ले, एक दूसरे की समस्या समाधान हो जाएगी. इवन आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 3 डे की आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रहती है, 15 डेज की भी आपकी एक्यूरेसी रहती है, और 21 डे की भी आपकी एक्यूरेसी रहती है, और चीजें रेपिटेटिव है. और प्लस इंडिया का जो कंडीशन है, आपको कुछ नहीं करना, अफगानिस्तान का मेट डेटा उठा लो, और नीचे से साउथ से आप ये हमारे शिप भी है, वेदर शिप्स हैं, उन सब का डेटा ओपन सोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. तो मतलब doable है. मतलब means if we have that graphic card and the laptop, we can do the prediction of weather.
It is like that is the only human resource we need. मतलब बच्चे के कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड निकाल लो, उसको बोल दो थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, थोड़ा सा अपन काम कर ले, and you can actually predict. So this we can provide it as a service. कि लोग बोलते हैं अरे हमारा प्याज खराब हो गया पता नहीं चला, अरे हमारा ये भाई आपको मैं एक दिन वार्निंग इसके लिए कोई वेबसाइट, ये जो डेटा हमको कलेक्ट करना है वो कहाँ से कलेक्ट होता है? which open source are you speaking about, like which open source it is? हर एक वेदर स्टेशन को बोला जाता है हर 3 घंटे में अपना वेदर डेटा अपलोड करो, और सिंस वेदर स्टेशन का एक काम करने का प्रोटोकॉल है, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू में अपना डेटा एक हेक्सा कोड होता है, 3 लाइन, बस 3 लाइन होता है हर एक वेदर स्टेशन, वो 3 लाइन अपने स्टेशन के ऊपर का डेटा वो डालता रहता है कि मेरे ऊपर क्लाउड विजिबिलिटी कितनी है, थंडर क्लाउड कितने हैं और स्टॉर्म क्लाउड कितने हैं, वो अपने ऊपर का डेटा डालता रहता है। और ये सारा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी कलेक्ट होता रहता है, जो कि ऑलरेडी ओपन ही है। हमें जस्ट वहां से अगर कैपेबिलिटी है तो वहां से डेटा कलेक्ट करो, डिसाइफर करो, अंडरस्टैंड करो उसका मतलब क्या, फिर प्रिडिक्ट करो। तो उसमें एक ह्यूमन स्किल आता है, जो कि मतलब डुएबल प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस है, डुएबल प्रोजेक्ट है। और गवर्नमेंट इन सब की किसी की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सर्विसेज चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वालों को, किसान का अनाज खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सो लाइक वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज। Okay. और दूसरा चीज, I just want to appreciate it that the maker concept, ये चीज मैंने I had first seen when I met a person who was person in the sense he was a engineering graduate, not engineering, he was aspiring for engineering, he was a 10th pass. So मैं वो बच्चे से मिला, so he was while I was in my hometown, so he was with this art of living, Shri Ravi Shankar. So उसने एक बहुत अच्छी चीज बताई मुझे कि he is attending that workshops, और वो workshop में उनको ऐसा सिखाया जाता था कि one day you just have to imagine that you have no parents to feed you today, okay, and whatever thing you feel like you are creative into that, आपको लगता है कि you are innovative, you do that thing, you make something of your own creativity, और उस creativity को आपको sell करना है the same day or the other day. So only when you sell you earn something, and उस पैसों से आप उस दिन you can have some food. तो ये एक चीज है, दो आई फील लाइक द एजुकेशन सिस्टम रियली लैक इन इंडिया राइट नाउ। सो ये चीज अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में स्टिल इट इज गोइंग ऑन इन द सेम ट्रैक कि marks and yes, Mr. Hari, what you are saying is it's like a design thinking exercise kind of thing. Yes, a lot of schools are getting towards the adult tinkering lab is kind of that design thinking thing only with let's say gadgets, okay? And we are also like as our company Learning While Traveling, we are also doing it with some schools, not some schools, one school started already, like starting now recently yes, recently my nephew is also he got they shifted, my sister's family shifted to Sweden, so even my nephew he has to once in a week they are made to do the work at maybe in the canteen or maybe in the school desk, so सबको एक एक काम जो है allocate कर देते हैं class B. So he is much young, might be 4th standard या 3rd standard में है वो अभी, 3rd या 4th में. So still they are doing that thing in this their education system is like that as compared to what यहाँ पे वो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सुबह उठो, मम्मी टिफिन रेडी करके देती है, पापा बोलते हैं जाओ बेटा स्कूल जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से, बस वही चीज चल रहा है इंडिया में तो as such. So here we still, our system is not focusing on the main core of education, why the people should get educated. Education means like he should be able to understand his capabilities, और जैसा कि मैंने we have seen in the book Ikigai. So the more you do the thing that you like
the more probability that you live a longer life. अगर आप जो चीज satisfied हो और वो कर रहे हो, so probability बहुत अच्छी होती है कि आप उसमें बहुत अच्छा करोगे आगे, और you will live a much happier and longer life than compared to जो जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, इंजीनियर बनना है बेटा आपको, you have to become an IIT or you have to come to IIM. So this thing जो है, ये चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि something we should improve in our education system, and maybe Brajesh ji and many other over here would have noted this, और future में शायद कुछ ना कुछ changes हमें देखने को मिले, right? Sure. Yeah. So you added very rightly, like we lack a lot of things. I would say it is not a lack, it's an opportunity. So जैसे हम लोग का एक workshop होता है जिसमें करवाते हैं कि we tell people what are the things you like. Second is what are the things you're good at, and what are the things is needed. If you're good at it and you like it, but it is not needed, then it's just a hobby. If you're good at it and people need it and you don't like it, then after some time you'll become frustrated. Just a job hota, IT job, they are good at it and it is needed, but they don't like it. थोड़े समय बाद depressing हो जाता है. So the whole cycle is finding your passion, what you are good at, what you like, and what is needed. That is like finding passion is one exercise for which in the maker space or maker fest we give them a lot of exposure, and by the domain expert who like it, who are good at it, and they are somehow making some progress in that. Second part is, first part is finding passion, second part is following your passion. Over there this entrepreneurship journey start where we invite our senior guys to share their expressions. और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने वो यंग लड़के की बात कही थी, कई बार होता है बचपन में ना जिज्ञासा रहती है, और जिज्ञासा रहती है और जिम्मेवारी कम रहती है, तो बंदा खुल के सोचता है, तो उस समय बंदे कई इनोवेशन लेके आते हैं कि चलो भैया ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, ऐसा करके देखते हैं. उस समय क्या होता है, संसाधन की कमी के कारण लोग मन मारते हैं. फिर एक बार मन मारने की आदत बन जाए तो जिंदगी भर मन ही मारते रहते हैं. तो एक जैसे एक प्रोजेक्ट आया था, गूगल सर्च करिएगा, एयरपॉड, AIRPOD, आज से 15 साल पहले आया था प्रोजेक्ट, जिसमें एक बंदा गाड़ी को चला रहा है कंप्रेस्ड गैस में. उसने 2 कार्बन फाइबर के सिलेंडर लिए और गाड़ी के नीचे लगा दिए, और गाड़ी को 120 की रफ्तार से 300 किलोमीटर की रेंज है, और वो सिर्फ कंप्रेस्ड गैस पे चल रही है. आज से 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, एयरपॉड, AIRPOD. उसको गूगल सर्च में करेंगे और सेटिंग्स में जाके आप टाइमलाइन थोड़ा पहले कर दीजिएगा, बिफोर दैट करके कर दीजिएगा, तब आपको एयरपॉड का दिखाया. यूट्यूब वगैरह पे वीडियो है. तो इनोवेशंस की कमी नहीं है. पीपल कम अप विद सॉल्यूशन, पीपल विद कैपेबिलिटी दे कम अप विद सॉल्यूशन. उसको कम्युनिकेट करना इज अ चैलेंज. कई बार लोग इनोवेटर्स को कुचला जाता है. हिस्ट्री में देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल. बंदे ने वाटर पावर कार बनाया, उसको मार दिया. जिसके पास ऑयल कंपनी है, ऑयल एम्पायर है, $1 बिलियन है, वो $1 बिलियन लगा देगा, वो सारी इनोवेशन काट देगा, जिससे कि आम जनता सेल्फ सस्टेन्ड हो, आम जनता डिसेंट्रलाइज्ड हो. लोग चाहते हैं कि बंदे आश्रित रहें. बिजली के लिए सेंट्रल डैम से आपका पावर जनरेट हो रहा है. जैसे कोल है, कोल की 10% एफिशिएंसी से ही आप स्टीम बना सकते हो, और स्टीम की 10% एफिशिएंसी से हम टरबाइन चला पाएंगे. So that reduces our efficiency, but still people are more dependent. So in our history, there's a lot of example. Our earlier ecosystem was like agriculture specific. We depend on ourselves and we work on it. So yeah, let's focus on maker festival, maker culture, and there's already a lot of small solutions. So let's Yeah, sure. Mr. Kishore, are you still here? I think we missed your hand raising. Yes. We make a comment and we'll close. Yeah, means I just want to comment that means after the May 17th post lockdown, means I insist a few policies should be changed in the central government. Like means many business gains contributed for the COVID crisis to the government. They contribute a very huge amount. That's good. That's fine. But if they contributed to the state government or state municipalities, that could be more proximate to the cause. Means that could have been utilized much
wider than the present right now it was utilizing, because many of the states are lacking the fund. I think this could be a main cause. And another comment is, mm, right now, according to my statistic, means I keep tracking these stats from the past many years. In my state, that is currently in Karnataka, roughly 6 to 7 lakh students will pass out every year. That is after 10th. In that, only 1 to 1.3 lakh students will appear for a common entrance test, and that is for that is they are purely in a science background. The remaining students will be there in a diploma or commerce or something else. But in that 50% means 50,000 will go to the medical field, and remaining will go to the engineering or someone to the BSc or BCom. Means, and if we see the stats from the past 10 years, we can say that there are many students are getting dropping out from education. Means they are reducing they come out of the means academic, and it's a right platform for the government to track this, and so that they can skilled in a many way. Means what it's getting a degree, it's not only a mere solution. They can mold their career in a different aspect of what they want, of like sports, activity, arts, culture, anything of their choice or interest. Yeah. Mhm. Okay. Yes. So I think today we got over time, so we'll close now. We'll meet tomorrow. So tomorrow we have case study on Tata. That is our topic, and 10 o'clock will be time. Thank you very much. Good night.